सब घंटे धीरज ने अपना कैमरा ऑन करा है। ऊपर सीपी अच्छा है। तो अपने से अगर कोई कुछ पता बता सकता है अपने बारे में। तो इसकी धीरज कहाँ से है? धीरज आवाज आ रही है? धीरज तुम आ रही है? अब बस 3 4 मिनट में स्टार्ट करने वाले हैं। Sing with me. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare उससे जो भी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, कैमरा ऑन करेंगे तो ये सेशन आपके लिए ज्यादा इंटरेक्टिव होगा, हमें भी आपको जानने का मौका मिलेगा।
Mm, Very good evening, everyone. First of all, thank you so much for joining this orientation program. I'm sure that this will be a wonderful start to your MBBS journey. Over the next few days, you will get to know more about your college, your academics, and the environment. You will get a part of this college for the next 3 years. You will also learn about various activities and opportunities that makes college life more exciting and more meaningful. And most importantly, you will get a chance to interact with your seniors और जो आपको गाइड करेंगे, जो अपने आप वो आपको अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे। तो इस साइड से आपको सीनियर का गाइडेंस भी मिलेगा, जो एमबीबीएस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आई ट्रूली होप यू मेक most of this program. You learn a lot from this. Enjoy every part of it. Welcome once again and best wishes for a wonderful beginning. So before we start, we have some mandatory introduction between us. First, I would like to introduce you, Dr. Praveen Bhaneria, sir. Dr. Praveen, sir, is within us. Sir is an alumni of the 2019 batch. Dr. Praveen Bhaneria, sir. He is a dynamic leader and a dedicated mentor, always supportive of his senior. Sir has led a number of college activities और सर का जो हेल्थ कैंप होते हैं, सोशल वर्क होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। सर ने जो 5 साल तक यहाँ पर है, इंटर्नशिप में भी काफ़ी सारे हेल्थ कैंप कंडक्ट किए अलग अलग विलेज एरिया, रूरल एरियाज और रिमोट लोकेशंस पे। एंड ही सर्व्ड एज अ जूनियर रेसिडेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ medicine for the 6 month in our college hospital. So the next between us is Dr. Anil Dhavre, sir. Sir is currently an intern at our college hospital. Sir is very humble and of helping nature. Sir was also a secretary of the reception committee of our annual fest, Prava. So we welcome sir. The next between us is Krishika Nimawat ma'am. Ma'am is from 2022 batch. She is very active and humble, especially all girls can seek ma'am help in hostels for any kind of problem they face and for the academic help also पढ़ाई से related आपको कुछ पूछना है कुछ जानना आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। The next between us is Tanish Padilla, sir. He's from 2022 batch. Sir is very polite and of friendly nature. Sir is very well in academics. He is a very good guide and mentor. So I thank all the seniors and the alumni who give their time for this orientation program. And once again, I welcome all the students and thank you all for joining this program. Gaurav, sir, uh, there is one more introduction between us. It is Dr. Himanshu Aswani, sir. Sir is currently intern in our college hospital. Sir is a very friendly nature and sir actively involved in the cultural activities. He has led many events with enthusiasm and continue to be a great source of motivation for juniors. So we welcome Himanshu Aswani, sir, also. तो we हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। गौरव सर प्लीज पीपीटी। Yes. So as you all know, this orientation program RM, the start of my college life. So we welcome all of you in some college. You are also now part of this ABVGMC, Atal Bihari Vajpayee Government Medical College. Next slide, please. तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इसका थोड़ा ओवरव्यू है। आज आप कॉलेज के बारे में, हमारे कैंपस के बारे में, आप जिस कोर्स को कर रहे हो एमबीबीएस, आपकी थ्योरी प्रैक्टिकल क्लिनिकल टेस्टिंग कैसी होती है, आपको कौन कौन सी बुक्स रीड करनी है, आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कौन से एग्जाम्स होते हैं, और वो आप आफ्टर एमबीबीएस आपको क्या करना है, और अगर आप पीजी करना चाहते हो तो उसकी प्रिपरेशन आपको अभी से करना हो तो कैसे करना है। इसके अलावा हमारे कॉलेज में क्या इवेंट्स होते हैं उसके बारे में जानने मिलेगा, और आखिरी में हमें डिवाइस प्रोग्राम होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नाउ आई रिक्वेस्ट वंशिका कौशिक मैम
from 2024 बैच. ही इज योर करंट सीनियर. एंड जो करंट सीनियर होता है वही सबसे मेन होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंट्रैक्शन आपका उन्हीं से होगा. वही आपको फर्स्ट स्टेप रहेंगे किसी भी चीज़ में हेल्प आउट करने के लिए. तो वंशिका कौशिक मैम will guide you ahead about the college. Good evening, everyone, my esteemed seniors, professors, and my batchmates and juniors of 2025 batch. I am Manshika Kaushik, student of 2024 batch. Let me start with unveiling the history of our college first. The college was previously named as Government Medical College in the honor of our former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee ji, who was also Member of Parliament from Vidisha constituency in the year 1991. The college was hence renamed after him as Atal Bihari Vajpayee Government Medical College. The college was officially inaugurated on 5th of September 2018. Now coming to the accreditations and recognitions of the college. Our college is affiliated, as you know, by Madhya Pradesh Medical Science University, Jabalpur, and is well recognized by National Medical Commission, that is NMC. Our institution is committed towards the continuous academic growth, which can be understood by A, the annual student intake, which was previously of 150 students and now it has increased to 180 students per year. B, being the introduction of PGs, that is the post-graduation studies for the students in the last 2 years. And as we are talking about academics, I want to take a moment to appreciate the efforts made by our respected professors for the continuous guidance and support to all the students, right from the pioneer batch that was 2018 to all the current batches. And now they are very encouraging and dedicated towards the student success. I also want you to know that two batches, that is the 2018 and 19, have already completed their graduation from this very college. The hospital began its services in the year 2021. Now let's talk about the co-curricular activities. The college also aims around the all-round development, therefore various extracurricular activities, including the cultural and sports events, are time to time organized. And for those who want to make their fitness to the next level, our college also provides gym facilities for all the students. To instill social responsibility, the college runs several social outreach programs, which you will get to know throughout your journey too, and all the students can voluntarily participate in them. So this was the synopsis of our institution and all the very best. Thank you so much, ma'am, for the beautiful explanation and the journey of this medical college from 2018 to 2025. Now, I request Dr. Anirudh Dhave, sir, to brief about our college campus. गुड इवनिंग एवरीवन. जैसा कि केशव सर ने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया मेरे बारे में, आज आपको कैंपस के बारे में बताने वाला हूँ, कैंपस और हॉस्पिटल के बारे में. तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे हॉस्पिटल से. हॉस्पिटल में अपन जैसे एंटर करेंगे मेन गेट से, तो अपने को हॉस्पिटल में सबसे पहले मिलेगा. फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे आप जाएंगे तो सबसे पहले ओपीडी आईपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर मिलता है. फिर आप देखेंगे कि उसके साइड में ही आपको फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पे ऑब्स गायनी है, उसका ओपीडी मिलेगा. फिर आप देखेंगे फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पे जाके तो आपको सारी जो लैब से अपनी पैथो माइक्रो और लैब और बायोकेमिस्ट्री लैब मिलेंगी. उसके ही साइड में आप देखेंगे वहीं पे अपना ब्लड बैंक जो अभी स्टार्ट हुआ है लास्ट ईयर, ब्लड बैंक के साइड में ही आपको मिलेगा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. फिर अपन देखते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे अपने को और अपने कैजुअलिटी मिलती है, जो कि 24 घंटे भरपूर पेशेंट से भरी रहती है. अपने यहाँ का जो कैजुअलिटी है, वो कैजुअलिटी के पास ही आप देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है. रेडियो में अपना पूरा एक्सरे होता है, यूएसजी होता है. बाकी अभी सीटी स्कैन और एमआरआई भी आने वाला अपने कॉलेज में. फिर आप देखेंगे कि उसकी साइड में इमरजेंसी कैजुअलिटी के साइड में अपना एमएस ऑफिस है. फिर अपन चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे. फर्स्ट फ्लोर पे आप देखेंगे कि जो ऑब्स गायनी को छोड़ के बाकी सारी ओपीडीज हो जाती हैं, जैसे ईएनटी ओपीडी, ऑप्थेल ओपीडी, पल्मो हुई, सर्जरी, ऑर्थो, मेडिसिन और पीडिया. फिर इसके अलावा डर्मा ओपीडी भी आप ले लो. डर्मा के बाद अपने यहाँ डेंटल ओपीडी भी है.
डेंटल के बाद अपन चलते सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे आप देखते हैं कि मेडिसिन वार्ड आ जाता है सेकंड फ्लोर पे। मेडिसिन के अलावा फिर आप सेकंड फ्लोर पे देखते हैं कि साइकेट्री का भी वार्ड है। साइकेट्री के अलावा वो पीडिया जो बच्चों वाला विभाग है उसका भी वार्ड हो जाता है। फिर आप चलेंगे थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे आप देखेंगे कि थर्ड फ्लोर पे जो सर्जिकल ब्रांच है, जैसे सर्जरी और तो हुआ, उसकी आपको वार्ड मिलेगा। फिर थर्ड के बाद अपन फोर्थ फ्लोर पे चलते हैं। फोर्थ पे देखते हैं आप एनेस्थीसिया का वार्ड मिलेगा आपको, ऑब्स गायनी का वार्ड मिलेगा, और जो बच्चों वाला पीडिया वार्ड है उसका एनआईसीयू और पीआईसीयू। एनआईसी नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, और पीआईसीयू का पीआईसीयू का पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट का वार्ड मिलेगा आप। फिर आप अपन फिफ्थ फ्लोर पे चलते। फिफ्थ फ्लोर पे अपना मेडिसिन आईसीयू मिलेगा। मेडिसिन आईसीयू के भी दो विंग्स है और डी विंग, जिसमें कि भरपूर पेशेंट रहते हैं हमेशा पूरे साल भर। तो आईसीयू को देखते हुए फिर अपन इसमें फिफ्थ फ्लोर पे ईएनटी जो अपना डिपार्टमेंट है उसका ओटी आपको मिलेगा। ईएनटी के साथ साथ ऑफसेल का भी वहीं पे और एनेस्थीसिया का भी है। फिर सबसे लास्ट फ्लोर जो है अपना सिक्स फ्लोर है। सिक्स फ्लोर पे आप देखेंगे कि ईएनटी और ऑफ्थेल जो है उसके वार्ड मिलेंगे आपको। उसके साथ साथ पल्मोनरी मेडिसिन उसका भी वार्ड रहेगा। और फिर जो डर्मा है, डर्मा का डर्मेटोलॉजी का भी वार्ड है। और इसके साथ साथ कैंटीन जो अपनी कॉलेज की है, कैंटीन भी आपको सिक्स फ्लोर पे मिलेगी। इसके बाद अपन चलते हैं कि अपन कॉलेज को विजिट करते हैं। कॉलेज में आप पहले से एंट्रेंस करेंगे, मेन मेन गेट से जो एंट्रेंस करेंगे, उसके बाद अपन कॉलेज में एंट्रेंस करते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक मिले। एडमिनिस्ट्रेटिव में आपको डीन ऑफिस, स्टूडेंट सेक्शन, जहाँ से आपका पूरा फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर, JR बाकी जो पूरे इसका कॉलेज का पूरे डॉक्टर्स का मेंटेनेंस वहीं से होता है पूरा। आपको इन और इसके बाद अपन देखते हैं कि फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट है एनाट और फिजियो, वो भी आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिलते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे उन दोनों के डिपार्टमेंट्स है और वहीं पे उनकी फिजियो की लैब है, जिसमें आपके सारे फर्स्ट ईयर में जो आपके क्लिनिकल होंगे वो वहीं पे होंगे। और एनाट में जो डिपार्टमेंट है उसका भी पूरा फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है। उसमें ही आपका डीएच आता है, डाइसेक्शन हॉल। डाइसेक्शन हॉल में भरपूर आपको वहीं पे डाइसेक्शन करने को मिलेगा। और हम बढ़िया से डेड बॉडीज वगैरह हैं यहाँ पे, तो आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। और जो अच्छी बात है कि ये इसको डाइसेक्शन जो आपको फर्स्ट ईयर में डाइसेक्शन हॉल में जाने को मिलेगा, इसके बाद जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। तो आप फर्स्ट ईयर में जितना डाइसेक्शन कर सकते हैं कर लेना, क्योंकि इसके बाद आपको बिल्कुल हाथ लगाने को नहीं मिलेगा। फिर अपन चलते फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे अपन देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पे फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, उसका डिपार्टमेंट मिलेगा आपको। उस बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, उसमें आपका बायोकेमिस्ट्री का क्लास सेमिनार हॉल भी मिलेगा वहीं पे, एसडीएल वगैरह लर्निंग के लिए। और वहीं पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह साइड में जो क्लिनिकल होते हैं वो होंगे। फिर उसके अलावा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट भी यहाँ पे कुछ है, जैसे कि पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का पूरा डिपार्टमेंट है, उसमें पैथोलॉजी की लैब भी है वहीं पे। आप जो पैथोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह है जो वो वहाँ पे करेंगे। इसके अलावा एलटी जो फर्स्ट ईयर का जो लेक्चर हॉल है, एलटी फर्स्ट, वो आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगा, जहाँ जहाँ पे आपका लेक्चर लगेंगे। फिर इसके अलावा एग्जाम हॉल, जो अपने एग्जाम होते हैं फाइनल ईयर एग्जाम, उसके लिए भी एक सेपरेट हॉल बना हुआ है। वहाँ पे ही फर्स्ट फ्लोर पे ही जो मिलेगा आपको, उसके भी सेपरेट दो दो विंग बने हुए हैं, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। फिर अपन इसके बाद चलते हैं सेकेंड फ्लोर पे। सेकेंड फ्लोर पे हॉस्पिटल बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग में अपन देखते हैं कि सेकेंड फ्लोर पे थर्ड ईयर के सब्जेक्ट हैं, जैसे पीएसएम जो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, जो आपको फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है वो इसके एग्जाम्स वगैरह आपको थर्ड ईयर में ही होंगे। तो पीएसएम है, एफएमटी है, फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी, उसमें भी उसका फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी का देखेंगे आप। उसके साइड में आपको सेंट्रल लाइब्रेरी उसका एंट्रेंस मिलेगा। फिर LT2 है, जो सेकेंड ईयर में आपकी क्लासेस जहाँ पे लगेगी वो वहाँ LT2 में लगेगी, जो कि सेकेंड फ्लोर पे है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं कि अपन थर्ड फ्लोर पे जाते हैं। थर्ड फ्लोर पे चलते हैं तो अपने को थर्ड फ्लोर में सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्मा है, उसका आपको डिपार्टमेंट मिलेगा, फार्मेकोलॉजी। उसके बाद माइक्रो माइक्रो का जो है डिपार्टमेंट, जो सेकेंड ईयर में आप पढ़ते हैं, वो भी थर्ड फ्लोर पे मिलेगा आपको। फिर इसके अलावा थर्ड ईयर का जो LT3 है, जहाँ पे आपकी थर्ड ईयर की क्लासेस लगेंगी, वो थर्ड फ्लोर पे मिलेगा। ठीक है, आप थर्ड फ्लोर का अपना पूरा अपना कॉलेज हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं कैंपस। कैंपस विजिट करेंगे अपन। हॉस्पिटल कॉलेज से निकल के अपन अब कैंपस की तरह चलते हैं। तो अपने को सबसे पहले कॉलेज के राइट हैंड साइड पे जो है सेंट्रल लाइब्रेरी मिलेगी, जिससे सेंट्रल लाइब्रेरी में बहुत स्पेस है, और हम पूरी किताब, जो किताबें आपकी पढ़ने की, वो सारी किताबें अवेलेबल है। आपको जितना पढ़ना हो पढ़ो। और सब बढ़िया एसी लगा हुआ है, और सेपरेट रूम, सेपरेट विंग बने हुए हैं, तो आप जाके वहाँ पढ़ सकते हैं। और ये 24 घंटे खुला रहता है, आपको जब जाना हो तब जा सकते हैं आप।
और कॉलेज कैंपस में आप देखेंगे कि बैडमिंटन वाला कोर्ट बना हुआ है, आप वहाँ बैडमिंटन खेल सकते हैं, और टेबल टेनिस के लिए भी एक सेपरेट बना हुआ है। और कॉलेज कॉलेज कैंपस में नीचे जो है वहाँ कैंटीन बनी हुई है। और इसके बाद फिर अपन देखते हैं कि कॉलेज से बाहर निकल के अपन कैंपस की तरफ चलते हैं, तो वहाँ देखते हैं अपन लाइब्रेरी के साइड से अपने को पूरा जो होस्ट जो प्रोफेसर्स की बिल्डिंग मिल जाती है। प्रोफेसर वाल बिल्डिंग में अपने को एचओडी, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर बिल्डिंग मिलती है। फिर उसके बाद आप जाएंगे तो आपको गर्ल्स हॉस्टल मिलेगा। गर्ल्स हॉस्टल से फिर आप जैसे ही अंदर होंगे तो जेआर बिल्डिंग मिलेगा, जेआर गर्ल्स। फिर उसके बाद जेआर बॉयज मिलेगा। फिर अपन देखते हैं कि उसके बाद बॉयज हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल 12 नंबर बिल्डिंग। फिर बॉयज हॉस्टल से के साइड में पीछे एक ग्राउंड, गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल के बीच में एक ग्राउंड बना हुआ है। वहाँ पे आप वॉलीबॉल कोर्ट भी है, और वहीं पे जिम भी बना हुआ है। जिम भी जा सकते हैं आप, और बढ़िया स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद अपन चलते हैं आगे, तो बॉयज हॉस्टल के आगे आपको एसआर सीनियर रेसिडेंट बिल्डिंग मिलेगी, और उसके बाद ही जो स्टाफ बिल्डिंग है वो भी मिलेगी। फिर लास्ट में अपन देखते हैं नर्स नर्स हॉस्टल है। नर्स हॉस्टल के बाद अपन जाते हैं तो अभी जो ट्रॉमा सेंटर है अपना, जो ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, तो वो आप देख सकते हैं ट्रॉमा सेंटर। फिर अपन उससे बाहर मेन रोड पे आ जाते हैं। मेन रोड के साइड सामने आप देखेंगे तो वहाँ पे अपने को बढ़िया खेल परिसर है, जो कि सुबह से ही ओपन हो जाता है, दिन भर खुला रहता है। तो आप कॉलेज के अलावा खेल परिसर में भी जाके अपना व्यायाम वगैरह स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, sir, for a very detailed explanation about our अनिरुद्ध से hospital बोलना and चाहूंगा केशव। अनिरुद्ध ने एक चीज छोड़ दी है, अपने कॉलेज में शिव मंदिर भी है। शिव मंदिर को भूल गए अनिरुद्ध जी। हाँ, अपने यस, कॉलेज में एक शिव मंदिर है। शिव जो मंदिर है वो शिव मंदिर है। एसआर बिल्डिंग और स्टाफ बिल्डिंग के बीच में है। तो कॉलेज का एक पार्क बना हुआ है, उसके उसमें है वो शिव मंदिर। तो थैंक यू सो मच, सर। नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर हिमांशु असवानी सर to tell about all of you about MBBS course and about theory, practical classes and clinical postings. So sir, please brief us all students. Hello, I am audible, sir. Yes, yes, sir. Am I audible, sir? Yes, sir. Thank you so much. Good evening, everyone. Thank you so much, Keshav sir, for giving me an opportunity to connect with my most little juniors. So, you know, guys, I'm starting with the course of MBBS. So the duration for this is 5.5 years, and in this 4.5 years is of academics and 1 year is of internship. तो इसमें मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो 4.5 साल अपन को पढ़ाई करनी है, और 1 साल हमको जो हमने पढ़ा उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। उसको प्रैक्टिकली हम उसका नॉलेज हम कितना समझ पाए वो हम डायरेक्ट हॉस्पिटल में पेशेंट्स पे समझेंगे। तो पहले एक बेसिक बेसिक बता देता हूँ कि फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। एनाटमी में हम बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क क्या है, कौन सी बोन्स हैं, कौन सी मसल्स हैं, आपस में उनका कनेक्शन कैसा है, ये सब पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी में जो बॉडी है, जो एक हेल्दी बॉडी है, वो नॉर्मली फंक्शन कैसे करती है, उसके बारे में हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स, एटम्स, न्यूक्लिक एसिड, जो अभी आप लोग बायो में पढ़ के आए होंगे। तो इन सब में भाई कैसे सेल्स के अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है, आप लोग ने पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो उन सब के बारे में हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर मूविंग ऑन टू सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में सबसे जो काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट जो बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत करता है, और फर्स्ट ईयर में भी मैं बता दूं कि एनाटमी गाइस बहुत अच्छे से पढ़ना है अपने को। एनाटमी में बहुत जोर देना है, क्योंकि एनाटमी में बहुत ज़्यादा ग्रास्प करने को होता है, बहुत ज़्यादा रटने को होता है। तो काफ़ी सारे मसल्स हैं बॉडी में, काफ़ी सारी बोन्स हैं। तो ये सब्जेक्ट है जो आपको शुरू से निगरानी में रखना है। और मैं आगे बताऊंगा अभी मेरी सेकंड स्लाइड में कि आपको अपने जो लेक्चर्स हैं, अपनी जो पोस्टिंग्स हैं क्लिनिकल, उनको कैसे से कैसे ज़्यादा यूटिलाइज आप कर पाएँ। तो वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। अभी एक बेसिक इंट्रो दे रहा हूँ। तो फेज 2 में हम बात करें सेकेंड ईयर में, तो पैथोलॉजी में जो फिजियोलॉजी में हमने पढ़ा कि नॉर्मल फंक्शनिंग क्या है बॉडी की। तो जब नॉर्मल फंक्शनिंग खराब हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, डिसीज, मतलब बॉडी में दिक्कत आई, तो पैथोलॉजी मतलब क्या दिक्कत आई नॉर्मल फंक्शनिंग में, इसको हम
पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनिजम्स जो आप देख रहे हो आजू बाजू, जैसे कोविड वायरस कौन नहीं जानता, सबने उसको देखा है, सबने उसको जिया है। और फार्मा में हम लोग ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं कि अब हमको पता चल गया कि ये बीमारी है, इससे हो रही है। पैथो में पता चला ये बीमारी है, माइक्रो में पता चला इससे होती है। फार्मा में हम ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसको एलिमिनेट कैसे करें, इसको ट्रीट कैसे करें। अब पार्ट 3 में आते हैं। अभी बीच में इसमें मॉडिफिकेशन हुआ था 2021 और 2022 बैच के लिए। थर्ड ईयर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट कर दिए गए थे, कम्युनिटी मेडिसिन और फॉरेंसिक, और ईएनटी ऑफ्थेल को फाइनल ईयर में डाल दिया गया था। लेकिन अभी वापस उसको वापस कर दिया गया है थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में कुल मिला के आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने के हैं, कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, ईएनटी और ऑफ्थेल्मोलॉजी। ईएनटी और ऑफ्थेल तो आप समझ रहे हैं, ईएनटी मतलब नाक कान गला, आपने सुना होगा नाक कान गला के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो बेसिकली वो उससे डील करता है। ऑफ्थेल इज ऑल अबाउट आइज। और एक आप लोग को एक छोटी सी हिंट भी दे देता हूँ कि जब ऑफ्थेल के प्रैक्टिकल में आपको कुछ नहीं बनेगा तो एचओडी सर आपसे ऑफ्थेल की स्पेलिंग पूछेंगे, जो कि आप सब लोग OPTH बताएंगे, और OPH वर्ड आप लोग भूल जाते हैं। तो याद रख लेना, आज की मेरी इस थोड़ी सी आपको काम आ सकती है, आपके वाइवा में सेव कर सकती है आपको। और कम्युनिटी मेडिसिन और फॉरेंसिक, कम्युनिटी मेडिसिन में ये है कि हम बेसिक अवेयरनेस फैलाते हैं कम्युनिटी में कि डिसीज डिसीज हो ही ना पाए ना, हम लोग कम्युनिटी में जाके काम करते हैं। हम जो रिस्क फैक्टर है उसी को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, और अगर बीमारी हो गई है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए उसको कंट्रोल करते हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन में जो ऑटोप्सी और डेड बॉडी से हम लोग डील करते हैं, टू नो द कॉज ऑफ डेथ। कमिंग टू द लास्ट पार्ट विच इज़ फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में ऐसे तो 9 सब्जेक्ट्स हैं, बट आप लोग को एग्जाम जो देना होता है वो जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, OBGY एंड पीडिया का देना होता है। बाकी ये डर्मा, साइकी, ऑर्थो, एनेस्थीसिया, रेडियो, ये इन्हीं के बीच बीच का पार्ट होता है। जैसे एनेस्थीसिया, ऑर्थो ये अपना सर्जरी में आ जाता है, और रेडियो, डर्मा, साइकी, रेडियो दोनों में आ जाता है। कई बार मेडिसिन सर्जरी दोनों में एक एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। बाकी डर्मा, साइकी बेसिकली मेडिसिन में रहता है, और ऑर्थो, एनेस्थीसिया सर्जरी में रहता है। OBGY और थर्ड ईयर की थर्ड ईयर में जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को, तो FMT जो सब्जेक्ट है, जो कि मेनली डेथ का कॉज पता करने के लिए, तो डॉक्टर, रिस्पेक्टेड डॉक्टर नरेंद्र पटेल सर, जो कि प्रोफेसर एंड HOD हैं फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के, वो भी हमारे साथ हैं। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस। एंड फिर से मैं एक बार फाइनल ईयर में आता हूँ। केशव सर, वो स्लाइड थोड़ा सा चली गई। हम्म, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आता हूँ, जिसमें कि थ्योरी, प्रैक्टिकल क्लासेस और क्लिनिकल पोस्टिंग्स के बारे में हम लोग समझेंगे। तो थ्योरी क्लासेस, जैसे अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में आओगे, तो वैसे तो 8 से 9 लगती हैं क्लासेस मॉर्निंग में सेकेंड ईयर से, और फिर एक लगती है 12 से 1। बीच में जो टाइम है 9 से 12 का, वो क्लिनिकल पोस्टिंग्स के लिए होता है। और उसके बाद 12 से 1 क्लास लगती है, और उसके बाद 1 से 2 लंच होता है, और 2 से 4 जो है वो प्रैक्टिकल्स और डेमोन्स्ट्रेशंस इन सब का टाइम होता है। लेकिन फर्स्ट ईयर में क्लास जो होती है, वो जो लेक्चर्स होते हैं वो 9 से 10 और 10 से 11 लगता है। और उसके बाद फिर DH होता है तुम एनाटमी का 11 से 1 तक। उसके बाद 2 से 4 तक प्रैक्टिकल्स क्लास होती हैं। तो मॉर्निंग की क्लास जो है 8 से 9 वाली, वो सेकेंड ईयर से चालू होगी आप लोग की, और क्लिनिकल पोस्टिंग्स भी जो 9 से 12 होती हैं। पर मैं एक बार आप लोग को वो बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूटिलाइज करें थ्योरी क्लासेस, प्रैक्टिकल सेशंस और क्लिनिकल पोस्टिंग्स को। थ्योरी क्लासेस में अगर हम लोग शुरुआत करें एनाटमी से, तो एनाटमी जो है वो सब्जेक्ट थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि फिजियोलॉजी हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के आते हैं नीट में। नीट की जब आप लोग तैयारी कर रहे थे UG की, बायोकेमिस्ट्री हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के आते हैं कि क्रैब साइकिल क्या है, ये सब मॉलिक्यूल्स कैसे क्या बने, ये सब हम लोग को पता रहता है। लेकिन एनाटमी सबसे मुश्किल सब्जेक्ट होता है, क्योंकि मसल्स आप लोग इतना डेप्थ में नहीं पढ़ के आ रहे होते हैं। मसल्स कैसी कैसे अटैच हैं, आपस में क्या अटैच है, टेंडन्स किस किस नाम है, एक एक बॉडी में जो पूरा
पूरे इतने ज़्यादा मसल्स हैं, इतने ज़्यादा बोन्स हैं, सबका अपन को पढ़ना है। तो फर्स्ट ईयर में अपन को कैसे करना है कि अपन जब लेक्चर अटेंड करने जाएं तो हम जो आज टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसकी बुक लेके जाएं साथ में, बीडी चौरसिया या फिर विश्राम सिंह, आप लोग जो से भी पढ़ना चाहें, एनाटॉमी की बात कर रहे हैं तो आप बुक लेके जाएं और आप साथ ही साथ नोट्स बनाएं। आप फुल अटेंटिव रहें लेक्चर में और डाउट्स भी ज़रूर पूछें। हमारे यहाँ की फैकल्टी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है और डाउट्स को बहुत पॉजिटिवली हल करती है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज़ का कि थ्योरी क्लासेस में कई बार क्या होता है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मज़े मारने के लिए है, पीछे बैक बेंचर बन के बैठ जाते हैं, पर दिस इज़ नॉट द वे। दिस इज़ नॉट द वे। आप लोग को अगर चाहिए कि आप लोग को पूरा सब्जेक्ट का कोर नॉलेज चाहिए और सिर्फ पास करने के लिए आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हो, तो बी अ फ्रंट बेंचर एंड ट्राई टू यूटिलाइज दिस टाइम एज मच एज यू कैन। और बाकी फैकल्टी बहुत अच्छी है, जैसे कि आप अगर डाउट पूछेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, और केशव सर और मैं फर्स्ट ईयर में साथ ही बैठते थे और पूरे डाउट्स हमारे क्लियर होते थे। उसके बाद प्रैक्टिकल सेशंस की अगर मैं बात करूं, प्रैक्टिकल सेशंस ही जो है वो मेन है। उसमें जो जो आप लोग को, जैसे डीएच मतलब होता है डिसेक्शन हॉल, वहाँ पे जो डेड बॉडी है उस पे सिखाया जाएगा आप हम लोगों को कि जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है वो असल में कैसा है। तो वहाँ पे डेड बॉडीज रियली रहती हैं, गवर्नमेंट ने और टीचर्स ने प्रोवाइड की हैं, और टीचर्स हम लोग को समझाएंगे ये मसल है, ये बोन है। ये हो गया एनाटॉमी का। फिजियोलॉजी में फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स करेंगे, जैसे हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करना है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है। गाइस, आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि आज से 1-2 महीने बाद आप अपना ब्लड ग्रुप खुद से बता सकते हो, आप अपना हीमोग्लोबिन खुद से बता सकते हो। तो दिस इज हाउ ब्यूटीफुल मेडिकल साइंस इज, एंड विद इन मियर फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, एक 2-3 मिनट के अंदर इस प्रोसेस में आप ब्लड ग्रुप बता सकते हो अपना, आप अपना हीमोग्लोबिन बता सकते हो। वैसे एलिस मेथड और बहुत सारी मेथड्स होती हैं। तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, बहुत आप लोग एंजॉय करोगे इस प्रोसेस को। साथ ही साथ मैं एक वार्निंग भी देना चाहूँगा कि जैसे अपन ब्लड अपनी जो नीडल से अपनी फिंगर प्रिक करते हैं तो आजू बाजू इन्फेक्शन के भी वो रहते हैं, तो आप सब लोग हेपेटाइटिस बी और टिटनस का वैक्सीनेशन लगवा के आएँ, है ना। या फिर अगर नहीं तो मेडिकल कॉलेज में आके लगवा लें, यहाँ भी हॉस्पिटल हमारा फुल फंक्शनिंग है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ प्रैक्टिकल ये हो गया। उस पर क्लिनिकल पोस्टिंग्स अभी आपकी फर्स्ट ईयर में तो नहीं होंगी, पर सेकेंड ईयर से क्लिनिकल पोस्टिंग्स आएंगी। तो उसमें 9 से 12 के बीच में जाना होता है आप लोगों को, और 9 से 12 के बीच में हर डिपार्टमेंट में जो भी क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स वो होते हैं जो कि फाइनल ईयर और थर्ड ईयर में ईएनटी ऑप्थेल, और फाइनल ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ऑप्स एंड गाइनी, मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, मेनली इनमें आपको जाना है और वहाँ की क्लिनिकल पोस्टिंग अटेंड करनी है। और आप वहाँ पे देखेंगे, वार्ड में जाएंगे आप ओपीडी में पेशेंट्स को देखेंगे। जो पेशेंट ओपीडी में ठीक नहीं हो सकता, हम उसको वार्ड में भर्ती करते हैं, वार्ड में उनको भर्ती करेंगे, उनकी चलाएंगे, जिसको जैसी ज़रूरत है वैसा ट्रीटमेंट देंगे। उसके बाद अगर कोई पेशेंट ज़्यादा सिक हो रहा है, वार्ड में भी ठीक नहीं हो रहा, वार्ड में उसका प्रोग्नोस अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम उसको आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। आईसीयू में हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। हमारा हॉस्पिटल, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत अच्छा फंक्शनिंग है। हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी है इस मामले में। आपको कभी भी आप जो डाउट हो आप सीधा फैकल्टी से पूछिए, एक रिस्पेक्ट मेंटेन करके। तो दे विल ऑलवेज हेल्प यू, दे आर ओनली देयर फॉर यू गाइस। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे और पेशेंट से अच्छे से बात करें। बाकी मेरे हिसाब से काफ़ी था केशव सर। थैंक यू सो मच सर। मतलब सर ने काफी सारी चीजें जो प्रैक्टिकली आप लोगों के काम आएगी कि आप इसमें मैनेजमेंट डायसेक्शन आपको क्या सीखना है, फिजियोलॉजी में क्या सीखना है, इस टाइप से, और ट्यूशन अगले साल कैसे क्या होगी। सर ने सब्जेक्ट का भी साहब आपको अच्छा ओवरव्यू दिया कि आप किस किस सब्जेक्ट में आप क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। तो काफी सारे एमबीबीएस स्टूडेंट आते हैं ना, उनको यही नहीं पता होता ये सब्जेक्ट हमारे एमबीबीएस में सब्जेक्ट कितने हैं, कैसे क्या होता है। तो ये बहुत जरूरी बात होती है जो आप सबको मालूम होना चाहिए। तो द नेक्स्ट इज, आपको बुक्स क्या क्या लेनी है, तो बुक्स किन किन बुक से पढ़ना है, तो उसके बारे में हमें गाइड करेंगे
कृषि का मान 22 बैच। Good evening, everyone. Am I audible? यस यस। My well wishes to all the dignitaries and my sincere gratitude for having me over here. Thank you so much, sir, for the introduction. सर ने जो इंट्रोडक्शन दिया वो बहुत ज्यादा हो गया है, बट उसमें एक चीज जो है जिससे मैं एग्री करूंगी, दैट 2025 बैच की जितनी भी लड़कियां हैं, दे कैन श्योरली कॉन्टैक्ट मी वेन एवर दे वॉन्ट। इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट ईयर बुक्स, तो एनाटॉमी में अगर हम बात करें तो हमारे पास में दो बहुत अच्छी बुक्स हैं, बीडी चौरसिया और विश्राम सिंह। आई हैव बीन टू बोथ दी बुक्स, और इसमें मुझे जो जिस्ट निकल के आया है कि आई फाइंड बीडी चौरसिया मच अप्रोचेबल लगी, वो आप पढ़ सकते हैं। बट विश्राम सिंह के जो डायग्राम्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। जैसे हिमांशु सर ने बताया कि एनाटॉमी पे एक ग्रिप स्टार्टिंग से होनी चाहिए, बिकॉज वो सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ है और आपके लिए बिल्कुल ही नया है एज कम्पेयर टू फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। बट आई फाइंड एनाटॉमी मच मोर इंटरेस्टिंग, बिकॉज एनाटॉमी इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। तो आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप अच्छे से उसको पिकअप कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि डीएच जो है वहीं पे बहुत फ्रूटफुल टाइम हमें हर दिन मिल जाता है, जिसे हम कंस्ट्रक्टिव में वे में यूज कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी गलती मैंने की थी इनिशियली, कि वी यूज टू वेस्ट आवर टाइम एट डीएच। सो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जब डीएच में जाएं तो पहले से 15 मिनट्स या 30 मिनट्स पहले उस वाले टॉपिक को एक बार देख ले। बिकॉज जब आपको विसरास पढ़ाए जाते हैं और अगर आपको क्लियर ही नहीं है कॉन्सेप्ट, तो आप बहुत ही वेग से दिखते हैं, एंड दैट गिव अ नेगेटिव इम्प्रेशन ऑन दी फैकल्टीज। तो आप एक बार उसको अच्छे से पढ़ें। और ऐसा है कि जैसे आप बीडी चौरसिया से पढ़ रहे हैं, तो आप साथ में पैरेलली विश्राम सिंह के डायग्राम्स को रेफर करें, उसी को आप स्टिकी नोट से बना के बीडी चौरसिया में रख लें। बिकॉज जैसे जैसे एग्जाम्स प्रोग्रेस होते हैं तो ऐसा लगता है कि दो बुक्स एक साथ हम नहीं हैंडल कर सकते। दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। रेस्ट एम्ब्रियोलॉजी के लिए या कुछ ऐसा स्पेसिफिक बुक तो प्रेफर नहीं की थी मैंने, बिकॉज जो हमें क्लास में पढ़ाई जाती थी स्लाइड्स या जो भी कंटेंट, दैट वाज मच इनफ फॉर अस। बट अगर आपको एडिशनल नॉलेज चाहिए तो आप इंदरविंग सिंह से आप रेफर कर सकते हैं। बात करते हैं अगर फिजियोलॉजी की, तो आई फाइंड जीके पाल वेरी 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 हेल्पिंग फॉर मी, बिकॉज जीके पाल के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो बहुत अच्छे हैं। फ्लो चार्ट्स जो हैं आप खुद बना सकते हैं, तो वो आपको बहुत ही फ्रूटफुल लगेगा। स्टैंडर्ड बुक तो गाइटन है, बट आई वोंट प्रेफर कि आप फर्स्ट ईयर में डायरेक्ट ही स्टैंडर्ड बुक्स पे चले जाएं। बिकॉज जैसे सेकेंड ईयर में जब मैं गई थी तो मैं बहुत ही ज्यादा पैशनेट थी कि नहीं, मुझे स्टैंडर्ड बुक्स पे ही जाना है। तो मैंने जैसे सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में ही जो है नॉर्मल बुक्स नहीं पकड़ के रॉबिन्स और ऐसे पकड़ी थी। 1.5 महीने तक आई कंटिन्यूड इट, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बट मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि स्टैंडर्ड बुक में जो चीज मुझे 30 मिनट्स में, मतलब जो नॉर्मल बुक्स है फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको मुझे पढ़ने में 30 मिनट्स लग रहे, तो वही टॉपिक स्टैंडर्ड बुक्स में मुझे 1.5 घंटा लगा रहा था। और हमारी जनरेशन में इतना पेशेंस लेवल नहीं है अभी फिलहाल कि हम किसी भी चीज को इतना लंबा पढ़ सकें। तो आप पहले प्रेफर कीजिए जीके वाल पाली। और अगर रही बात सेम्बुलिंगम की, 90 या 95% लोग सेम्बुलिंगम पे जाते हैं। उसमें आपको शॉर्टकट मेथड्स में चीजें मिल जाएंगी, पर मुझे लगता है उससे कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल भी बिल्डअप नहीं होंगे। हम इनिशियली बिल्कुल भी पढ़ते नहीं है और फिर एंड पे हम इतने ज्यादा हाइपर हो जाते हैं कि अब हमें पढ़ना है, हमारी यूनिवर्सिटी आ रहा है, तो लेट्स गो टू सेम्बुलिंगम। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप दिन में 1 घंटा या 1.5 घंटा भी एकेडमिक्स को देंगे ऑन एन एवरेज, तो ये मोर देन सफिशिएंट है, आप अच्छे से अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। बायोकेमिस्ट्री, माय मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। इसकी बात करें, इसकी दो बुक्स हैं, एक सत्यनारायण वासुदेवन। सबके अपना अपना परसेप्शन रहता है, किसी को वासुदेवन बहुत अच्छी लगती है, किसी को सत्यनारायण। मैंने पर्सनली प्रेफर की थी सत्यनारायण। उसमें मुझे थोड़ा सा लैंग्वेज और कंटेंट रेलिवेंट लगा था। वासुदेवन में कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत ही इररेलेवेंट चले जाते हैं, तो एक टाइम के बाद में आपको एग्जॉशन फील होने लग जाएगा। तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस तो रहेगी सत्यनारायण।
3 एडवाइसेस जो मेरी रहेंगी, मैंने जो पर्सनली अपनी फर्स्ट ईयर में गलतियां की हैं, आई वांट कि 2025 बैच वो ना करे। पहला तो है इंटरैक्शन। मेरा फर्स्ट ईयर में बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत लीस्ट इंटरैक्शन रहा है। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट रही हूँ सीनियर्स से और ऐसे। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहेगा आपके लिए। आपको अपने सीनियर्स से एक्टिवली कांटेक्ट में रहना चाहिए। एटलीस्ट वंस फोर्थ नाइट में आपको उनसे कांटेक्ट करके क्लियर करना चाहिए कि मैं मैम या सर ऐसे जा रहा हूँ, क्या मुझे ऐसे ही चलना चाहिए या कुछ चेंजेस लाने चाहिए। दे विल गाइड यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे, बिकॉज जो चीज आप प्रेजेंट में फॉलो कर रहे हो वो ऑलरेडी उस चीज से थोड़े टाइम पहले ही निकल के आए हैं। सेकेंडली, apart from academics you should be also active in co-curricular activities। जैसा मैंने बोला, फर्स्ट ईयर में आई वॉज सो इंडोलेंट इनटू ऑल द एक्टिविटीज। आई ट्राई टू एस्केप फ्रॉम ऑल द थिंग्स। मैंने फर्स्ट ईयर में हमेशा प्रेफरेंस गर्ल्स आना रखी है एज कम्पेयर टू एक्टिविटीज, दो आई लव टू प्रेफर को करिकुलर एक्टिविटीज। तो आप ट्राई कीजिए कि एकेडमिक्स और को करिकुलर एक्टिविटीज को आप साइमल्टेनियसली लेकर चले। इंटरैक्शन, को करिकुलर एक्टिविटीज, और तीसरी चीज, आपका पर्सनल जो एनवायरमेंट एंड ऑरा है वो आप पे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। एक तो सबसे पहली चीज है कि आप अच्छी संगत के साथ रहें। एटलीस्ट एक या दो ही लोग हों आपके पास में, पर अच्छे हों। जैसे सर ने बोला कि वो फ्रंट बेंचर्स थे, आई वॉज पर्सनली, अभी भी मैं फर्स्ट बेंच पे ही बैठना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है आगे बैठ के कॉन्सेप्ट्स को समझना। तो अगर आपके एक या दो फ्रेंड्स भी हैं, बट अच्छे होने चाहिए कंपनी, बिकॉज वो आपकी जो एमबीबीएस की जर्नी है वो डिसाइड करने में बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करेंगे कि आप सही साइड पे जा रहे हो, सेफर साइड पे या रॉन्ग साइड पे। तो आपका जो कंपेनियनशिप है वो अच्छा होना चाहिए। और मेरा जो सबसे पर्सनल एक्सपीरियंस आज तक का रहा है कि मेरे लिए एजुकेशन बहुत इजी रही है कंपैरेटिवली। पढ़ना बहुत इजी है एज कम्पेयर टू वहाँ के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना। तो जब भी आपको प्रॉब्लमेटिक लगे, जैसा सर ने कहा है, यू शुड कॉन्टैक्ट योर सीनियर्स। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू, एंड वी वार्मली वेलकम 2025 बैच हियर इन एबीवी जीएमसी फैमिली। सो यू आर अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, और आप जब भी चाहे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर, एंड थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। गुड इवनिंग। Um, Thank you so much, Upma, for this wonderful explanation. Uh, आप में से सभी डाउट्स होंगे, हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे एट द एंड ऑफ द पीपीटी। तो आप उन सबको डाउट्स आपके सॉल्व होंगे, आप उस बात की चिंता मत करिएगा। So I started sir to brief all of you about the exams and MBBS. Evening, everyone. Thank you, sir, for giving me the opportunity. और अब आते हैं इस पे जो बहुत लोगों को बहुत पसंद होगा, एग्जाम्स। और ये शब्द आपका पीछा एमबीबीएस से तो नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि लाइफ इज फुल ऑफ एग्जाम्स, सो इज योर एमबीबीएस कोर्स। तो एग्जाम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है पीसीटी, पार्ट कंप्लीशन टेस्ट। एमबीबीएस के एग्जाम का एक छोटा सा हिस्सा। पार्ट कंप्लीशन टेस्ट तब होता है जब आपका एक यूनिट या दो यूनिट किसी सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में डिपार्टमेंट अगर प्लान करता है कि हमें इन दो यूनिट्स का, एक यूनिट का हमको एक टेस्ट लेना है छोटा सा, तो डिपार्टमेंट वुड इन्फॉर्म यू आफ्टर द यूनिट्स आर कंप्लीटेड। और उसके बाद में वो लोग एक या दो हफ्ते बाद में उन टॉपिक्स का टेस्ट रखेंगे। नॉर्मली ये जो टेस्ट होता है 50-20 मार्क्स का हो सकता है। कभी कभार वाइवा बेस्ड होता है, कभी कभार सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड होता है, कभी कभार शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो जो भी आपने रिसेंटली पढ़ा होगा वो आपको इसमें बताना है। जो भी पेपर पैटर्न होगा वो डिपार्टमेंट का होता है। सेकेंड इज सेशनल एग्जाम। जो सेशनल एग्जाम होता है वो भी हम बोल सकते हैं कि उसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें होती है। थ्योरी एग्जाम होगा आपका 100 मार्क्स का हर सब्जेक्ट का, और प्रैक्टिकल जो होता है वो भी 100 मार्क्स का होता है, कभी कभार 50 मार्क्स का भी हो सकता है। तो हर सब्जेक्ट के ये दो एग्जाम्स होंगे आपके।
और नॉर्मली सेशनल्स जो देखे गए हैं वो 2 होते हैं हर साल। जैसे आपका सेशन स्टार्ट होगा उसके 3 से 4 महीने बाद आपका फर्स्ट सेशनल होगा, और फर्स्ट सेशनल के भी अगेन 3 से 4 महीने बाद या 5 महीने बाद आपका सेकंड सेशनल होता है। तो इनके लिए भी आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सेशनल के एग्जाम के जो रिजल्ट होता है वो आपका इंटरनल असेसमेंट में ऐड होगा। तो आपके लिए मतलब ये बेटर होगा कि आप लोग सेशनल्स के लिए भी उतने सीरियसनेस के साथ पढ़ें जितना आप यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ते हैं, या एटलीस्ट इतना कोशिश करें कि सेशनल में भी अच्छे मार्क्स लाएं या पास हो जाएं। नेक्स्ट जो आते हैं सबसे 2 बड़े एग्जाम्स, दे आर प्री यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो जो प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है और यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, दोनों का पैटर्न एकदम सेम होता है। प्री यूनिवर्सिटी हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का एक जस्ट ट्रेलर टाइप का होता है, हर चीज इसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरह होती है। जो हमारे पेपर पैटर्न होता है फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, तो हर तीनों सब्जेक्ट के 2-2 थ्योरी पेपर होते हैं और एक प्रैक्टिकल होता है। तो पीयू में भी सेम पैटर्न फॉलो होता है, और यूनिवर्सिटी में तो वैसा होता ही है। तो जो हमारा प्री प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है वो यूनिवर्सिटी के लगभग 15 दिन पहले या कभी 1 महीने पहले भी हो जाता है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे। और फिर जब सबसे लास्ट में यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, उसमें तो यू हैव अगेन 2 थ्योरी पेपर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट एंड 1 प्रैक्टिकल ऑफ ईच सब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगेन आपको आपके सामने आते हैं एक्सटर्नल्स और आपके वाइवा के लिए और उन सब चीज़ों के लिए। तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को। और ये जो इतनी सारी जो एग्जाम्स होती है उससे आप इंडायरेक्टली प्रिपेयर हो जाते हो फाइनल एग्जाम्स को फेस करने के लिए। लेकिन अगेन यही कि बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है कि हम तो स्टार्टिंग में नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे। तो प्रेफर करूंगा कि आप लोग ऐसा ना सोचें और ना करें, कि अगर आप लोग एकदम लास्ट के लिए हर चीज़ को रखेंगे और लास्ट में अगर वो चीज़ आपके काम नहीं आई या फिर आपसे नहीं संभली, तो फिर आपको बहुत नुकसान हो सकता है। पेपर पैटर्न पे आते हैं, एग्जाम्स के तो डिस्कस कर लिया है हमने, पेपर पैटर्न पे आते हैं। सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ये एग्जाम पैटर्न में हमें एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं पहले के पेपर पैटर्न में, ये जो आपका पेपर पैटर्न है ये रिवाइज्ड है। पहले के पेपर पैटर्न में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते थे, 2 वो भी लॉन्ग क्वेश्चंस। लेकिन अभी आप लोगों के लिए एक बेनिफिट ये है कि लॉन्ग क्वेश्चंस 10 मार्क्स का किया गया है और वो भी एक ही है, तो आपको कम लिखना पड़ेगा थोड़ा। और शॉर्ट नोट्स हैं, लाइक जो हमारा होता है 1.5 या 2 पेज के समथिंग, अगर आपने अच्छा कंटेंट लिखा है तो शॉर्ट नोट्स उसके लिए। और यूनिवर्सिटी और एनएमसी ने 2 नई चीजें यहाँ पे अलग से ऐड की है, अप्लाइड एंड रीजनिंग। अप्लाइड में जो भी आपका क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आपको अप्लाइड एनाटॉमी या फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री जो भी होगा आपको उसके बारे में लिखना होगा। आपको इस बारे में प्रिपेयर कराया जाएगा बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। एंड अगेन रीजनिंग क्वेश्चंस जो कि आपको केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, और वो भी इस साल या लास्ट ईयर से नया ऐड किया गया है, जिससे कि आपको एकदम अर्ली एक्सपोजर मिल सकेगा टू द क्लिनिकल सिनेरियो। क्योंकि फाइनली हमको इंटर्नशिप में आके पेशेंट के साथ में इंटरेक्शन करना है पूरे टाइम, तो वो आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। देन लास्ट थिंग इज द पासिंग क्राइटेरिया, कि इतना पढ़ने के बाद में आपको पास होने के लिए कितना चाहिए होगा मार्क्स। तो वो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में आपको मिनिमम मिनिमम 40% चाहिए होगा पास होने के लिए। लेकिन इनका एग्रीगेट जब बनेगा, जब फाइनल ग्रैंड टोटल होगा, तो आपको दोनों का एग्रीगेट होके 50% मिनिमम आपको लाना पड़ेगा। तो इंडिविजुअली तो आप 40% पे आप पास हो जाओगे, लेकिन एग्रीगेट में आप 50% इज द मिनिमम। तो आप कोशिश तो यही करें कि 40% के चक्कर में ना रह के आप यही मान 50% है दोनों में, और ताकि एग्रीगेट आपका टोटल 50% के ऊपर बने। एंड लास्ट थिंग इज द अटेंडेंस, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन लिया है तो कॉलेज तो आना चाहिए। दिस इज व्हाट फैकल्टीज एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। तो थ्योरी में मिनिमम अटेंडेंस इज 75%, एंड प्रैक्टिकल में तो क्योंकि प्रैक्टिकल्स की 80% अटेंडेंस इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिकल ज़्यादा होते नहीं है, हर सब्जेक्ट के 1 या 2 प्रैक्टिकल्स होंगे वीक में। तो मंथ में हो गए लगभग 4 प्रैक्टिकल्स, कभी अगर कोई छुट्टी हुई या कोई वेकेशन तो प्रैक्टिकल्स का टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा। सिमिलरली थ्योरी का भी ऐसे होता है, पर थ्योरी के लेक्चर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, फ्रिक्वेंटली होते हैं, इसलिए वो कवर आप कर सकते हो। लेकिन स्पेशली जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, और आपको कोशिश ये करना है कि हम लोग रेगुलरली कॉलेज जाएं।
ठीक है, we will take any question, any queries from you at the end of the session. Thank you, sir. Sir, about exam pattern and all, this is a very important information because ये हमें एंड टाइम पे पता लगता है जब एग्जाम पास आ जाते हैं। तो आई होप आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे इस इंफॉर्मेशन को। देन is a very handy and good leader. Actively participate in many college activities. Sir is always ready to guide you in academics and beyond. Whatever you need, sir is always ready. So I request to guide you with the MBBS and the PG preparation for that. Good evening, respected HOD sir, faculty members, my respected seniors, batchmates, and all my juniors. Thank you so much, Keshav sir, for this introduction. And I would like to thank the organizing team for giving me this opportunity to speak in front of you. Sir, am I audible? Yes, sir, you are audible. तो गाइस, यहाँ पे मैं स्कोप आफ्टर एमबीबीएस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ। जैसा कि हम सबको पता है, सबको एमबीबीएस करने के बाद पीजी जरूर करना है, ठीक है। 90% बच्चों के दिमाग में उन्होंने अभी से चूज भी करके रखा होगा कि मेरे को सर्जरी करना है, मेरे को रेडियो करना है, मेरे को डर्मा करना है। लेकिन पीजी के अलावा और भी ऑप्शन है हमारे पास, मैं उसके ऊपर बात करने आया हूँ। सबसे पहले गवर्नमेंट एंड सिविल सर्विसेज ने बताया है, यूपीएससी सीएमएस एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू हम सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में एज अ ग्रेड ए ऑफिसर पोस्ट होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे आप सब समझते हैं, रेलवे, डिफेंस, यूनियन टेरिटरीज की म्यूनिसिपल काउंसिल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट का फायदा ये रहता है, एक तो पे अच्छा है, उसके अलावा बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, पेड लीव मिलती है, वेकेशंस मिलते हैं। दैट्स ऑल। सेकंड, आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल्स ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप मेडिकल कॉलेज ही ज्वाइन कर सकते हैं एज अ जेआर। आप अपना प्राइवेट सेटअप कर सकते हैं। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड योर प्रैक्टिस, ठीक है। थर्ड, रिसर्च एंड टीचिंग। ICMR करके एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल रिसर्च काइंड ऑफ पर्पस। जैसा मैं आप सबको बता दूं कि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेडिकल फील्ड के लिए। जब तक हमारे पास किसी चीज का रिसर्च नहीं होगा, सॉलिड प्रूफ नहीं होगा, तब तक हम उस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते इन क्लिनिक्स, ठीक है। लास्ट, हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्री, फार्मा कंपनीज, मेडिकल राइटिंग एंड ये हेल्थ टेक स्टार्टअप। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब आजकल एमबीबीएस लिमिटेड नहीं बचा है कि आपको एमबीबीएस करके पीजी करना है और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है एज अ डॉक्टर। आप एमबीबीएस करके बहुत जगह जा सकते हैं। मैं एक पॉइंट भूल गया हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का। आप एमबीबीएस करके हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए कर सकते हैं, देन आप अच्छे बड़े हॉस्पिटल से मैनेजमेंट में जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा स्कोप है आफ्टर एमबीबीएस हर चीज में। अब आज के मेन टॉपिक पे मैं आता हूं, जो हमारा पीजी प्रिपरेशन है। हाँ जी, जैसा कि सामने लिखा हुआ है कि टोटल यहाँ 4 एग्जाम है। सबसे पहले नीट पीजी फॉर एमडी, एमएफ, डीएनबी सीट्स इन इंडिया, ठीक है। नीट पीजी में लगभग इंडिया के सारे कॉलेजेस रहते हैं एक्सेप्ट एम्स, जिपमर, निमहंस न्यूरो का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है बेंगलोर में, एंड पीजीआई। ये सारे एग्जाम्स में एंट्रेंस आपको INI CET के थ्रू मिलेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट, INI CET, ठीक है। नेक्स्ट FMG एंड नेक्स्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि हो सकता है पॉसिबिलिटी, अभी तक ऐसा कुछ क्लियर नोटिस नहीं है कि 2025 बैच के लिए नेक्स्ट एग्जाम हो। नेक्स्ट में आपका पैटर्न ये रहेगा कि आफ्टर 4.5 ईयर्स ऑफ एमबीबीएस आपको नेक्स्ट के लिए अप्लाई करना है। अगर आप नेक्स्ट में पास होते हैं, देन आप अपनी इंटर्नशिप करने जाएंगे, एंड आफ्टर इंटर्नशिप आपको नेक्स्ट 2 देना है, जो आपका लाइसेंसिंग एग्जाम होगा। एंड इसमें नेक्स्ट के थ्रू ही आपको पीजी की सीट मिलेगी, नीट पीजी खत्म हो जाएगा। एंड जो लोग इंडिया के बाहर से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, उनके लिए यूएसएमएलई, प्लेब एंड और बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं। यूएसएमएलई फॉर यूनाइटेड स्टेट्स एंड प्लेब मेनली फॉर यूनाइटेड किंगडम, एंड और बहुत अदर ऑप्शंस है बाहर जाने के लिए भी। अब हम मेन बात पे आते हैं कि प्रिपरेशन करनी कैसे है। जैसा कि आप सब अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के आए हैं, क्लियर करके आए हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं
कि हमको कैसे कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री करूंगा कि नीट यूजी की प्रिपरेशन एंड पीजी की प्रिपरेशन बहुत अलग है, लेकिन एक चीज बिल्कुल सेम है, वो है आपका हार्डवर्क। आप हार्डवर्क करेंगे तो बिल्कुल आपका जैसे यूजी में सिलेक्शन हुआ वैसे ही आपका पीजी में सिलेक्शन होगा। जैसे कि 4.5 ईयर्स आपको पढ़ाई करनी है, 1 साल इंटर्नशिप मिलेगा ही, आपको बहुत टाइम है पीजी की प्रिपरेशन करने के लिए। उसके लिए सबसे पहली चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, आप जिस ईयर में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उन सब्जेक्ट्स को आप अपना स्ट्रॉन्ग करते चले। आपने ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिए, आप ऑटोमेटिकली पीजी के लिए प्रिपेयर करते जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर के लिए आपको सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि आप अपने फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रखें। बाकी जो मेन पीजी की हम लोग बात करेंगे वो सेकेंड ईयर से करेंगे। सेकेंड ईयर से अपन एक्टिवली पीजी के लिए कोचिंग स्टार्ट करेंगे या सेल्फ लर्निंग स्टार्ट करेंगे, वो आगे की प्रोसीजर है। फर्स्ट ईयर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपको अपने फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखने हैं। सामने स्क्रीन में आपका लिखा हुआ है मैरो, प्रेपलेटर, फेरिबेलम। ये एक्चुअली कुछ कोचिंग के नेम्स है जो मेनली अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। इसके अलावा ये तो ऑनलाइन कोचिंग्स है, आप ऑफलाइन कोचिंग भी जा सकते हैं। डैम्स हो गया, ई गुरुकुल हो गया, ये लोग ऑफलाइन कोचिंग भी देते हैं। ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन पढ़ने में जाना चाहते हैं या आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ईयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपने फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करके चलिए। जैसे कि अभी मेरे से पहले और सर ने बताया कि कैसे फर्स्ट ईयर हमको पढ़ना है, अभी के लिए मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, आप फर्स्ट ईयर अपना स्ट्रॉन्ग करिए। बाकी आगे हम बिल्कुल आपके और सेशंस लेंगे जिसमें हम आगे पीजी की प्रिपरेशन के लिए बात करेंगे। हमारा कॉलेज मतलब बहुत अच्छी रैंक्स देता है नीट पीजी में, एंड हम चाहेंगे आगे भी और अच्छी रैंक्स दे। एंड इसके लिए आपका भी सपोर्ट चाहिए, हमारा फैकल्टी भी सपोर्ट करता है, कॉलेज में माहौल बना रहना चाहिए। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेहनत करिए फर्स्ट ईयर। थैंक यू सो मच केशव सर। Thank you so much, sir, for a very concise and a brief explanation about 3D preparation. Now we have a very important introduction between us, who is our chief guest. We are privileged to have Dr. Naren Patel, sir, professor and head of the Department of Forensic Medicine at our college. Sir is an exceptional teacher, but also a compassionate mentor and guide to all students. He is a founder of Health and Wellness Club in our college, which actively promotes physical and mental well-being among students. Sir has a very deep knowledge of yoga, and सर ने उस योगा से रिलेटेड काफी सारी एक्टिविटीज हमारे कॉलेज में वर्कशॉप कंडक्ट किए हैं। वो सबके लिए काफी इंस्पायरिंग रहते हैं, सबको हेल्दी रहना और बैलेंस लाइफ स्टाइल के लिए काफी मोटिवेट करते हैं। सर अपने हम्बल और अप्रोचेबल नेचर के लिए जाने जाते हैं। ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प स्टूडेंट्स व्हेनेवर वी आर नीड, व्हेनेवर वी फेस stress, emotional challenges, or feeling of loneliness. Sir patiently listen, guide, and motivate us with care and wisdom. We sincerely thank you, Dr. Naren Patel, sir, for giving his valuable time for today's orientation program. His guidance and association will undoubtedly continue to be a positive, inspiring, and nurturing for all of us. Thank you so much, sir, for having between us. हेलो, मेरी आवाज Sir, सुनाई दे रही है? yes, sir, you are. जी सर। और दिखाई भी दे रहा हूँ, दिखाई भी दे रहा हूँ। नहीं सर, दिखाई नहीं दे रहा। सर वीडियो नहीं आ रहा है अभी। अब दिखाई दे रहा हूँ? जी सर। हाँ, तो थैंक यू केशव and his team for inviting me in this lecture. So I was patiently listening all of you, Deepak, Kritika, and others about our college and PG preparation, and you also told about Deepak also told about the various aspects of courses other than our MBBS. So केशव ने मुझे मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है कि सर जो है फॉरेंसिक के अलावा हमारे यहाँ वेलबींग के क्लब के में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं
जो है आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूं कि भाई मैं फोरेंसिक का प्रोफेसर हूं। इसके अलावा भी आपको आपकी लाइफ में दूसरी स्किल्स की जरूरत होती है। तो उस उन स्किल्स में इंट्रोड्यूस कराने में जो वेलबींग नाम की चीज है वो स्किल है कि आपको चूज करना है कि हाउ टू लिव ए क्वालिटी लाइफ। तो उस पे भी मैं हम लोगों ने एक कमेटी बनाई और उसको वेलबींग कमेटी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दुनिया के जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज होती हैं, आप आईआईटी के बच्चों से बात करिए, आप इंटरनेशनली अपने आप को एक्सपोज करिए, थोड़ा खोलिए, तब आप देखेंगे कि जो यूनिवर्सिटी होती है और जो कॉलेज होता है वो केवल जो आप पढ़ने आए हो वो पढ़ने के लिए नहीं होता है। इवन आईआईटी का तो ये फंडा होता है कि आईआईटी में घुसने के बाद बच्चा बोलता है यहाँ पढ़ाई के अलावा इतना कुछ होता है कि व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। तो आपका जो डायमेंशनल है, जो यूनी डायमेंशनल आपका जो सोच है, जो यूनी डायमेंशनल पर्सनालिटी है, वो आके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी में कन्वर्ट होती है। और इसमें हम टीचर्स की भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि हम लोग आपके लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका में हमें एक रोल दिया गया है। तो हम जिस तरह से बिहेव करेंगे कि उसी तरह से आप लोग भी बिहेव करोगे। ऐसा एक बहुत डीप इम्पैक्ट होता है अपने सीनियर्स का, अपने उन लोगों का जो आपके आसपास होते हैं, जो जिनको देखकर आप बड़े होते हो, क्योंकि वो टॉर्च बियरर हैं, वो आगे चल रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस आपकी लाइफ से ज्यादा है। तो वेलनेस जो होती है उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज होती है जो आपकी स्टेज पे काम आएगी, वो ये है कि माइंड को खोलना और सही ढंग से खोलना, सही अलाइनमेंट में आना। तो मैं योगा के बारे में बोलूंगा कि योग का मतलब होता है कि जो बॉडी माइंड और सोल में अलाइनमेंट कर दे। मतलब हमारे जो जीवन की जो समस्या है उसमें समस्या क्या होती है कि हमारा मन कहीं भाग रहा होता है, बॉडी कहीं भाग रही होती है, और हम चाह कुछ रहे होते हैं अंतरात्मा से। तो क्या होता है हमारे भीतर में एक एक क्लेश होता है, क्लेश बोलते हैं इसको आध्यात्म की भाषा में, कि हमारे भीतर दुख चलता है। तो हमें, मैं बच्चों से, अभी फाउंडेशन कोर्स के बच्चे इसमें बहुत सारे प्रतिभागी हैं, तो उनसे मैंने बात की थी अभी उस फाउंडेशन कोर्स में भी, कि हमारे भीतर बहुत सारी एंजाइटी चलती है। जैसे मान लो अभी तुम फर्स्ट ईयर में आए हो, तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि भाई अब तुम्हें लग रहा होगा हॉस्टल बुरी है, ये लोग बुरे हैं, ये कॉलेज बुरा है, ये खाना बुरा है। तो जिंदगी जो है, जो जितनी टफ है उससे कई कोई गुना टफ बन जाती है। और केशव है, ये सब लोग उस लाइफ से निकले हुए हैं, तो इन सब ने भी उसी मैस का खाना खाया है और उन्हीं चीजों को फेस किया है कि भाई ये मैस का खाना तो ऐसा ही होता है, ये लाइफ ऐसी ही होती है, ये हॉस्टल के कमरे ऐसे ही होते हैं, बाथरूम ऐसी ही होती है। तो अब इस सब के बीच आपको जीना है, और जीना ही नहीं है, इतने अच्छे ढंग से जीना है कि इसको पूरा का पूरा यूटिलाइज कर सको, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण अवसर है ये मेडिकल कॉलेज। और आपकी जैसे स्कूलिंग आपकी जिंदगी के लिए एक नींव का पत्थर थी, तो ऐसे ही ये मेडिकल कॉलेज की जर्नी है, बड़ी महत्वपूर्ण है। अब ये जो 5 साल आप बिताने वाले हो, ये जिंदगी को बिल्कुल एक नए आयाम की तरह आपको ले जाएंगे, क्योंकि जैसे आप यहाँ घुसे थे, अब आप इस फैक्ट्री से निकलोगे तो कुछ और बन के निकलोगे। अब आपके पास चॉइस होती है, जैसा अभी किसी कृतिका ने बोला था शायद, चॉइस है कि आप अच्छे लोगों से जुड़ो, गुड फ्रेंड से जुड़ो, और इस ढंग से निकलो कि आप जब इस फैक्ट्री से निकलो तो आप सोना बन के निकलो। ऐसा ना हो कि इस फैक्ट्री में घुसे थे सोना बन के और निकले तो पता चला कि हम तो बिल्कुल कबाड़ हो गए, कबाड़ में बेचने लायक भी नहीं बचे। तो हमको इस फैक्ट्री में घुसते समय जैसे भी हम आए थे कोई बात नहीं, लेकिन निकलते समय हमें गोल्ड बन जाना है। और गोल्ड वो होता है जिसके अंदर कम से कम इम्प्योरिटी होती है, जिसके ऊपर किसी चीज का असर नहीं होता, टेम्परेचर का असर नहीं होता, एनवायरनमेंट का असर कम होता है, जिसकी चमक जो है डे बाय डे ज्यों की त्यों बनी रहती। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो बॉक्स होता है जिसके अंदर हम जी रहे होते हैं, उस बॉक्स में हम अकेले होते हैं और हम अपनी समझ से काम कर रहे होते हैं। और आपने एक चीज गौर की होगी कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉब्लम को सुन रहे होते हैं, तो हम बहुत जल्दी आंसर दे देते हैं कि अरे अरे, अरे, जैसे मान लो केशव से कोई पूछेगा कि ये सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी कैसे पास होना है, वो कहेगा खटक से ऐसे बताएगा कि अब तो ऐसे पास हो जाओगे। लेकिन अभी ये केशव भी जब फर्स्ट ईयर में था तो ये भी घबराए रहते थे, नहीं?
तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब आप जिस कंडीशन को फेस कर रहे होते हो वो कंडीशन बड़ी टफ होती है। अभी ये जो आपके सीनियर्स हैं ये प्री पीजी दे रहे हैं, तो अब इनको प्री पीजी बड़ी टफ लग रही होगी। अब इनको सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर इतना टफ नहीं लगेगा। तो जो भी लोग इस प्रोसेस में आए हैं उन सब लोगों को ये प्रोसेस झेलनी पड़ती है। हमारे लेवल पे हमारी अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको क्या है कि एक ऐसे ढंग से अपने आप को एनालाइज करना है जैसे आप दूसरों को एनालाइज करते हो। अब बड़े आसानी से बोलते हो ना कि यार इसको ऐसा कर लेना चाहिए, इसको सुबह टाइम पे उठ जाना चाहिए और इसको बढ़िया ब्रेकफास्ट सुधार लेना चाहिए, इसकी ईटिंग हैबिट ठीक नहीं है, ये जो है अच्छे फ्रेंड नहीं रखता। अब ये सब सलाह आप किसको दे रहे होते हो? अपने आसपास के लोगों को दे रहे होते हो। लेकिन आपसे कोई बोले कि आप में ये मिस्टेक है, ये आपसे कैसे सुधरेगी? तो आप बोलोगे यार मुझ में मिस्टेक है, हाँ मानोगे भी, मान लो अच्छे आदमी हो तो, लेकिन आप सुधार नहीं पाओ। तो आउट ऑफ बॉक्स जो चीजें होती हैं, आउट ऑफ बॉक्स मतलब जैसे आप अपने फ्रेंड को देखते हो वैसे ही आप अपने आप को देखने लगो, आउट ऑफ बॉक्स। तो आउट ऑफ बॉक्स जो है वो स्पिरिचुअलिटी है या आध्यात्म। आउट ऑफ बॉक्स से मतलब आप अपने आप को एक विटनेस की तरह देख रहे हो, अपने आप अब अपने भी समीक्षक बन गए, अब अपने आप को देख रहे हो। क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स जब आप चलते हो तो अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को दूर से देख पाते, और दूर से जब हम देखते हैं तब हम उनके सोल्यूशन पे काम कर पाते हैं। तो मैं बच्चों से यहाँ भी कई बार मिलता हूँ और उनको कई बार टेक्निक सिखाता हूँ। वैसे तो किसी भी चीज को खुद ही करना पड़ता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हमें एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जैसे आपके सीनियर्स बता रहे हैं कि यार ऐसा करो कि फर्स्ट ईयर की बुक्स ऐसे पढ़ लो, एनाटॉमी के डायग्राम ऐसे बना लो, तो आसानी से बन जाते हैं। दो बुक कैरी करना बड़ा टफ होता है, आखिरी में तो एक ही बुक पे आना पड़ता है। कुछ लोग बोलेंगे कि कंसेप्ट के चक्कर में ही नहीं पढ़ना, आखिरी में तो ऐसे करना पड़ता है। तो ऐसे ही जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो बताते हैं कि यार आखिरी में जो है लाइफ को ऐसे मूव करना पड़ता है। तो जो मैं जिस सेगमेंट में ज्यादातर बातें करता हूँ वो आउट ऑफ बॉक्स सेगमेंट है, जहां आप वो चीजें सीखते हो जो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रही हैं। तो उसी में से हम जो बुक्स का आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं, कभी भगवत गीता के बारे में बताते हैं, कभी आपको हम बताते हैं कि पतंजलि योग सूत्र नाम की कोई किताब है, कभी आपको हम विवेकानंद के बारे में बताते हैं। ये वही लोग हैं जिनने आउट ऑफ बॉक्स ये दुनिया देखी है और आउट ऑफ बॉक्स जाके आपको ये सब बताया है। जैसे भगवत गीता है तो भगवत गीता में अर्जुन है, तो बोले अर्जुन क्या है? वो एक परेशान आदमी है जो अपना काम नहीं कर पा रहा है, बड़ा परेशान है। और परेशानी में वो अपने अपने क्वेश्चन पूछता है कि साहब ऐसा है कि मैं बड़ा फंस गया हूँ, इतना फंस गया हूँ कि अब मुझसे तो अपना धनुष भी नहीं उठाया जाता। तो अब तुम्हारे ऊपर समस्या आने वाली है कि तुमसे अपनी बुक नहीं पढ़ी जाएगी या अपने एग्जाम नहीं दिए जाएंगे, तो तुम्हें भी उस जगह पे पहुंच जाओगे जहां बेचारा अर्जुन है। अब अर्जुन वहां पहुंच गया तो तुम्हारे भीतर जो कृष्ण है उससे तो तुमने परिचय पाया नहीं। अब परिचय नहीं पाया तो उस तक पहुंचना बड़ा हो जाता है कठिन। तो उस तक पहुंचने के कई तरीके हैं, उस उन तरीकों में से वो तरीके जो आपके आसपास अवेलेबल हैं, आपके अच्छे दोस्त, आपके अच्छे टीचर, आपके आसपास वो वाइब्रेशंस जो आपको आगे ले जाएंगी, तो उन वाइब्रेशंस को आपको कैच करना है, अच्छी बुक्स से लगातार परिचित होते रहना है। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस मशीन में आप घुसे हो तो आपको सोना बन के निकलना है, और सोना बनने के लिए जो सबसे कीमती चीज है वो है आपका विचार। जिन विचारों के साथ आप जी रहे होते हो वही विचार कल आपके भीतर परिणित हो रहे होते हैं और परिणाम में निकल रहे होते हैं। तो आपको चूज करने का अधिकार है कि आपको किस विचार को ऊर्जा देनी है। यदि आप सोच रहे हो कि आप बड़े चालाक बन रहे हो और आप ऐसे विचारों में जी रहे हो जो विचार आप ही नहीं जीना चाहते, मान लो आप सोच रहे हो कि यार इसका बुरा हो जाए, इसके नंबर कम आ जाए, ये ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो ये जो चारों तरफ नेगेटिविटी है ये विचार है। तो आपको उन विचारों की तरफ बढ़ना है जिस जैसा कि तुम होना चाहते हो। और जो व्यक्ति उन विचारों की तरफ बढ़ता है उन विचारों से उसको ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे विचार जो आपको नीचे की ओर ले जाते हैं तो वो आपको बर्बाद करते हैं, ऐसे विचार जो आपको ऊपर की ओर ले जाते हैं वो आपको ऊपर उठाते हैं। तो आप यदि ऊपर उठना चाहते हो तो ऐसे अच्छे विचारों से आप जुड़ते चलो। और केवल जुड़ना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मान लीजिए कि आपने पूरा कमरा बंद कर रखा है, अंधेरा कमरा कर रखा है, तो थोड़ा सा मान लो आपने खिड़की खोल दी, थोड़ी सी रोशनी आई, थोड़ी सी भी रोशनी जो होती है वो अंधेरे को कम कर देती या खत्म ही कर देती। अंधेरे का मतलब ही ये होता है कि जरा भी रोशनी नहीं है। यदि जरा सी भी खिड़की खुल गई तो आप उसको अंधेरा नहीं कह पाओगे। ये आप हो सकता है आप कहो कि यार अब थोड़ा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अंधेरा तो नहीं रहा ना, ब्लैंक नहीं रहा। तो आपके जीवन में जो अंधेरा दूर करने की प्रक्रिया है वो छोटी सी भी कोशिश आपको काम दे सकती है। और इसमें
जो चीजें आउट ऑफ बॉक्स हैं वो आपको बड़ा सहायता देती हैं। बुक्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, लेक्चर हैं, टीचर्स हैं। फिर आपको धीरे धीरे कल्टीवेट करना पड़ता है कि आपको इस सेगमेंट में से क्या पसंद है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये निकाल लिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग आंखें बंद करके बैठ जाएं, मेडिटेशन करें, सब लोग चैंटिंग करें। पर सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। कुछ लोग जैसे मान लीजिए कि कुछ बच्चे होते हैं वो आउट ऑफ बॉक्स, जैसे कि किसी, अभी हमारे यहाँ ये एक पाठशाला है, तो उस पाठशाला से जुड़ गए तो उससे क्या होता है, उनको एनर्जी मिलने लगती है। या कोई और सेवा कार्य है, कॉलेज है, यहाँ तो सेवा ही सेवा है, पेशेंट के लिए हेल्प करने लग गए या किसी अपने जूनियर्स की हेल्प करने लगे। ये वो चीजें हैं जो आपकी सेल्फिशनेस से ऊपर है। जैसे आज ये जो क्लास चल रही है ये आउट ऑफ बॉक्स है। क्यों? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आज यदि ये क्लास नहीं भी होती तो भी दुनिया चल रही थी, लेकिन कुछ लोग हैं हमारे यहाँ जो उन्होंने ये ऑर्गेनाइज की, तो ये क्या है, आउट ऑफ बॉक्स चीज है। तो ये सब चीजें आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देती हैं, और ये एनर्जी क्या होता है कि कल कल आपके लिए दिशा निर्देशन देने का काम करेगी। तो आप अपने विचारों को चुनते समय बड़ी सावधानी बरतें, और अच्छे विचार, अच्छे दोस्तों की तरफ बढ़ें। और जिंदगी लंबी भी है और छोटी भी है। लंबी ऐसे है कि अभी आप 18 साल के हो और अभी आपको एक्सपेक्टेड एज 70-80 है, तो अभी 60 साल और जीना तो बड़ी लंबी है। और छोटी ऐसी है कि कभी भी खत्म हो सकती है। तो जिंदगी की वैल्यू भी करना है कि भाई हमें जीने को मिला है, इसको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ, बड़े थैंकफुलनेस के साथ जीना भी है, खूब जीना भी है। और अपनी अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है कि भाई जिंदगी छोटी ना हो जाए। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है कि जिंदगी छोटी हो जाए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने माइंडसेट का ध्यान रखें, अच्छे माइंडसेट के साथ जिएं। और मैं ये कह रहा हूँ कि लंबी भी इसलिए है क्योंकि जिंदगी किसी एक दो डिसीजन से खत्म नहीं होने वाली है। आप यदि कछुआ बन जाते हैं और धीरे 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 चलते जाते हैं तो जिंदगी बहुत अच्छी चलती है और आप अच्छे खासे मुकाम पे पहुंच जाते हो। बहुत ज्यादा रैबिट बनने की जरूरत नहीं है। अब आप आ गए हो, 5 साल आपको यहाँ बिताने हैं, फिर पीजी करनी है, फिर उसके बाद आगे की यात्रा होगी, आपको एसआरशिप करनी होगी, जेआरशिप करनी होगी, फेलोशिप करनी होगी। फिर आप सेटल होगे, फिर अपने करियर में प्रोग्रेस करोगे, फिर एक मुकाम तक पहुंचोगे। तो ये यात्रा है और इस यात्रा को एंजॉय करो। एंजॉय करने के लिए एक अच्छे माइंडसेट की जरूरत होती है, हेल्दी माइंडसेट की जरूरत होती है, ताकि आप उस नेगेटिविटी से क्रॉस कर सको और उसमें इस यात्रा में बहुत अच्छे से तैर सको, आगे बढ़ सको। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। मैं हमेशा इन चीजों के लिए अवेलेबल रहता हूँ। फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए तो अवेलेबल रहता ही हूँ। साथ में किसी को मानसिक समस्या हो, कोई अपनी जिंदगी में कुछ रोशनी चाहता हो कि भाई हम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ें, तो उसको मैं गाइड करने में बड़ा खुश होता हूँ, बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ। और हमेशा चाहे सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, इन पर वीडियो भी शेयर करता रहता हूँ, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैले और लोग सुने कि भाई समझें कि हमारी थिंकिंग कैसा होना चाहिए, कैसा करने से स्पिरिचुअलिटी या कैसे थॉट प्रोसेस से हमारे जिंदगी में हमारे हल्कापन आता है, हमारी जिंदगी बेहतर होती है। तो यही एक मैसेज था। थॉट्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मॉन्क माइंडसेट होता है, एक बुक है ना, हु सोल्ड द फरारी, उसमें चर्चा की गई है कि भाई एक मोंक माइंडसेट होता है। मोंक माइंडसेट का मतलब ये होता है कि वो गैर जिम्मेदार नहीं होता है, लेकिन वो उसको बेपरवाह भी होता है। तो जो आप अभी जिस एज में हो, बढ़िया पढ़ाई करो, और ये मत सोचो कि कल क्या होगा, नंबर कितने आएंगे, कैसे आएंगे। बढ़िया एनाटॉमी में जाओ, खूब डिसेक्शन में सीखो, फन की तरह सीखो। बहुत प्रेशर नहीं लेना कि भाई सीख जाएंगे फिर डीएम कार्डियो करेंगे। अरे जब कार्डियो करोगे, जब कब की जब देखी जाएगी। अभी बढ़िया एनाटॉमी आराम से पढ़ो। जब फिजियोलॉजी पढ़ो तो फिजियोलॉजी ऐसे पढ़ो जैसे कि अपने हार्ट को जान रहे हो, अपने ब्रेन को जान रहे हो, अपनी किडनी को जान रहे हो, उसको आनंद लो। हर जगह यदि आनंद ढूंढोगे तो बायोकेमिस्ट्री में भी आनंद मिलेगा कि भाई हमारा ग्लूकोज कैसे बनता है, हमारी बॉडी में कैसे यूज होता है, कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे हमारे भीतर कौन सा हार्मोन आता है। तो ये जो जिंदगी का जो फन है वो तभी दिखेगा जब आप आज में रहोगे। फैसिनेट हो जाओगे कि यार कल की चिंता हो रही है कि 10 साल बाद मैं ऐसा डॉक्टर बनूं। वो जब टाइम आएगा, जबकि जब बात है अभी आपके पास एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है, बढ़िया उसको एंजॉय कीजिए, इसी को अपना जीवन का लक्ष्य बनाइए। ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे एनाटॉमी को पढ़िए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एनाटॉमी को जीवन भर जीना है। आपको ये 1 साल इसी के लिए मिला है, 1 साल फिजियोलॉजी को जाने मिला है, 1 साल आपको जो है बायोकेमिस्ट्री के लिए मिला है। तो फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर में जाने की कोशिश ना करें। बढ़िया फर्स्ट ईयर को एंजॉय करें, जब आएगा टाइम तो सेकंड ईयर में जाना, फिर आएगा टाइम तो फाइनल ईयर में जाना, फिर आएगा टाइम तो पीजी चूज करना, फिर आएगा टाइम तो डॉक्टर बन जाना। फिर डे वन से जबरदस्ती का प्रेशर, जबरदस्ती की तनाव, जबरदस्ती की कोशिश करना, ये सब बेकार है। आप अपना वर्तमान में रहें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं और उसका मजा लें। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि और भी स्पीकर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।
और डॉक्टर केशव को भी धन्यवाद जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू एवरीवन। यदि कोई क्वेश्चन होगा तो मैं बाद में आंसर देना चाहूंगा। हेलो हेलो केशव। थैंक यू सर। सर जी सर, आ रही है। थैंक यू सो मच सर। सर हमेशा कई सारी डिफिकल्ट चीज़ों को काफ़ी आसान में हम सबको एक्सप्लेन कर देते हैं। और अब मेरे ख्याल से सर ने इतना अच्छा आप सभी को एक इंट्रोडक्शन दिया है, एक ओवरव्यू दिया है कैसे आपको इस एमबीबीएस की जर्नी को जीना है, क्या क्या आपको परेशानी आ सकती है, इनके साथ भी आप हमेशा कैसे मोटिवेट होकर आगे बढ़ सकते हैं। तो सर हमेशा एक बहुत ही अच्छा प्रभावशाली हम सबके बीच में मार्गदर्शन करते हैं। मैं सर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना एक अमूल्य समय हम सबके बीच में दिया। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस थैंक यू। वंडरफुल, थैंक यू। वेरी वंडरफुल। So now I would like to introduce you with a group Inspire. Inspire group is working among the youth among all over India in the prestigious and reputed institute like IIT, Triple IT, NIT, AIMS, and all the prestigious institute. This group is working. Uh, it is working all over India for the betterment of the youth and college students. Next. तो व्हाट बेसिकली द इंस्पायर डू, इंस्पायर ग्रुप करता क्या है, कैसे वो हम सबको हेल्प आउट करता है, कैसे हम जैसे यूथ को वो गाइड करता है। तो ट्रेनिंग इन सॉफ्ट स्किल सच एज स्ट्रेस मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग स्पीकिंग लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एक्सेट्रा बाय एप्लीकेशन ऑफ टाइमलेस विजडम इन मॉडर्न डे सिनेरियो। तो अब आप सब एमबीबीएस में आ जाए तो आप सोचिए कि आपका स्ट्रेस बढ़ते ही जाना है। आप एक डॉक्टर बनेंगे तो पब्लिक स्पीकिंग है, लीडरशिप है, मैनेजमेंट की आपको आना चाहिए। आप आगे चल के कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट में या किसी हॉस्पिटल्स में एक लीडर की तरह रोल प्ले करेंगे। तो ये सब स्किल्स आप में आना चाहिए। सेकेंडली, ब्रिंगिंग आउट पोटेंशियल इन द इंडिविजुअल लाइक कंसंट्रेशन, मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस। काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हमारा पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, हम घंटों पर किताब खोल के बैठे रहते हैं, या बोले हमें हम 2-3 दिन लाइब्रेरी जाते हैं, बैठते हैं, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर हम इधर उधर उसमें लग जाते हैं, मोबाइल में लग जाते हैं, रील्स में लग जाते हैं, हमारा मोटिवेशन नहीं होता। या कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है, एग्जाम के एक रात पहले उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो लगता है हम सब भूल रहे हैं सर, हम सब भूल गए। तो ये सब चीजें हम सबके साथ होती हैं, किसी के साथ कम, किसी के साथ ज्यादा। तो ये सब चीजें हम सबको अपनी लाइफ में फेस करना पड़ती है। ब्लेंडिंग कैरेक्टर विद कॉम्पिटेंस एंड ब्रिंगिंग अबाउट अ लॉन्ग एंड्यूरिंग सक्सेस। तो जो कैरेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक बहुत ही फेमस कोट है, शायद आपने पहले भी सुना होगा, इफ यू लूज योर हेल्थ यू लूज, इफ यू लूज योर मनी यू लूज नथिंग, इफ यू लूज योर हेल्थ यू लूज समथिंग, बट इफ यू लूज योर कैरेक्टर यू लूज एवरीथिंग। तो आप समझिए कैरेक्टर का आपके लाइफ में कितना, अगर आपका एक अच्छा कैरेक्टर नहीं होगा, आपका कितना भी अच्छा मेडिकल साइंस का नॉलेज हो, समाज आपको एक डॉक्टर में एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपका कैरेक्टर आपकी बहुत वैल्यू रखता है। तो आपका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेविंग यूथ फ्रॉम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स एंड एडिक्शन लाइक हार्म बॉडी एंड माइंड। तो आज के समय में जो हर कोई मानेगा कि यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है एडिक्शन एंड इट्स हैबिट। चाहे वो अल्कोहल एडिक्शन हो, चाहे वो स्मोकिंग का एडिक्शन हो, चाहे वो गैम्बलिंग का हो। आजकल गैम्बलिंग का तो इतना हो गया है, हमारे हमारे खुद के कॉलेज में भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी लिटरली स्कॉलरशिप क्रिकेट बैटिंग और गेमिंग ऐप पर पूरी बर्बाद कर दी। वो अपना, उससे उनका करियर अफेक्ट होता है, उनकी फैमिली अफेक्ट होती है, और ये बहुत आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जो यूथ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो है एडिक्शन और उनकी हैबिट्स। ये हमें हर तरीके से डैमेज करती है। डीलिंग विद सेंसिटिविटी एंड सेल्फ अवेयरनेस इन थॉट वर्ड्स एंड एक्शन। यस, हम सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है। सेल्फ अवेयर होने का मतलब क्या है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। अब आप डॉक्टर है, एक मेडिकल स्टूडेंट है, तो हम सब में किसी के आसपास गली मोहल्ले या हमारे एरिया में कोई भी डॉक्टर होगा, तो एक वो आइडियल रहता है कि देखो डॉक्टर साहब ऐसे करते हैं, डॉक्टर साहब सुबह वॉकिंग पे जाते हैं, उनकी फूड हैबिट्स ऐसी है, उनका नेचर रहता है। तो आप भी एक समाज में एक रेपुटेशन अब आपकी रहेगी, सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन रहेगी। तो आपको अपने बारे में सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है।
कि आप किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, अपने छोटों से आपका क्या बिहेवियर है, अपने बड़ों से आपका क्या बिहेवियर है, आपके जो सीनियर प्रोफेसर्स है उनसे आपका कैसा एटीट्यूड है, ये सब चीज़ें आगे बहुत मायने रखाती है। ऑर्गेनाइज आउटिंग फॉर एक्सपीरियंसिंग क्लोजर टच विद नेचर एंड हम। तो कई सारे जैसे कि टूर होते हैं, कैंप होते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग लोगों से हमें मिलने को मिलता है, इंटरेक्ट करने को मिलता है, हम उनकी स्किल सीखते हैं, हमारे पास कुछ टैलेंट है तो हम उनसे वो शेयर करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें होती है। तो जो इंस्पायर ग्रुप है ये इन सब पे काम करता है। तो वो काम कैसे करता है, उसका एक कोर्स है, डिस्कवर योर सेल्फ। तो आप इसको नाम से ही समझ लेंगे, डिस्कवर योर सेल्फ। हमें अपने अंदर की चीज को डिस्कवर करना है। हम सबके अंदर एक इनर पोटेंशियल है, एक डिफरेंट स्किल है, एक स्पेशल स्किल है, हम सबके अंदर है वो पोटेंशियल। तो आप सब नीट निकाल के लाए। हाँ, इस बार का नीट काफी डिफिकल्ट भी था, सबको पता ही है, 200 साल का प्रेडिक्शन था। तो आप सबका IQ बाकी से बेहतर है, आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप सीट लाए हैं, विच इज वो अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो डिस्कवर योर सेल्फ। तो आपको अपने आप को डिस्कवर करना है, आपकी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या है। तो ये जो डिस्कवर योर सेल्फ है, ये हमारे कॉलेज में 2 साल से कोर्स हम कर रहे हैं। तो जो पिछले साल हुआ था वो 2024 बैच के लिए हुआ था, उसके पिछले साल हुआ था वो 2022 बैच प्लस 2023 बैच, इन दोनों के लिए कंबाइन हुआ था। तो हम पिछले 2 साल से कोर्स कर रहे हैं, और इस कोर्स करने के बाद जितने भी स्टूडेंट हैं उनका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, और इस कोर्स के लिए काफ़ी ग्रेटिट्यूड रहता है, मतलब उससे हमको काफ़ी कुछ मिलता है। तो ये कोर्स ऑल ओवर इंडिया लाखों स्टूडेंट करते हैं, और ये लाइफ चेंजिंग उनको अपना मानते हैं। तो अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल्फ का ये प्रोग्राम है, ये एक्चुअली इससे आपको क्या मिलने वाला है, क्या एक्सपीरियंस होगा। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है क्लैरिटी, वैल्यू एंड वांट एंड लाइफ। तो डिवाइस जो डिस्कवरी ऑफ सेल्फ है आपको ये समझने में मदद करता है कि आप में आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपकी वैल्यूज क्या है, और आप किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी बात है। दूसरा ये है स्ट्रेस स्ट्रेस कम करना और पीस ऑफ माइंड को बढ़ाने। इसके जो सेशंस होते हैं, हम आप में उसको कुछ टेक्निक्स बताएंगे, और वो आपको गाइड करता है आपको। तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी कि एकेडमिक प्रेशर हो या डे टू डे प्रेशर हो। तो एकेडमिक प्रेशर मतलब कैसा, अभी किसी के एग्जाम आते हैं ना, तो हम भी तो साल एकदम हिल जाते हैं कि एकेडमिक प्रेशर हमें इतना ज़्यादा होता है। डे टू डे लाइफ में भी आपको कभी कभी बहुत प्रेशर आ सकता है, स्पेशली सेकंड ईयर में जब पोस्टिंग जाना शुरू करते हैं, तो सुबह 8 बजे से आप उठते हैं, तो 9 से 12 क्लिनिकल पोस्टिंग रहती है। हो सकता है आपको 9 से 12 3 घंटे आपको बैठने को भी नहीं मिलेगी, पोस्टिंग ऐसी होती है। तो काफ़ी डे टू डे प्रेशर हो जाता है। उस प्रेशर को टैकल करना, उस स्ट्रेस में रहना, तो उसको मैनेज करना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तीसरा जो है वो आपको इसमें कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करता है। आप में आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, और जब आप वाइवा देना चाहेंगे, जब आप प्रैक्टिकल देंगे, जब आप फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी का वाइवा ये प्रैक्टिकल देंगे, तो आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है वो हमारा कॉन्फिडेंस है। तो आपको अपने अंदर का कॉन्फिडेंस फील करना चाहिए। तो क्या है, एबल टू फेस चैलेंजेस, फीलिंग ओवर ग्राउंडेड, एबल टू फेस चैलेंजेस। तो आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आएंगे आप उसको बढ़िया से फेस कर पाएं। और जो तीसरी सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आप एक डॉक्टर हैं, आप एक सिर्फ आप स्टूडेंट नहीं हैं। तो आपको इस बात से अवेयर रहना और एक बैलेंस्ड वे में अपनी लाइफ को समझना, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो डिवाइस है, ये आपको इतनी सारी चीज़ें मतलब देता है। तो ओवरऑल DRS डिवाइस एक ऐसा प्रोग्राम है जो सिर्फ सुनने या लेक्चर लेने का नहीं है, बल्कि एक एक्सपीरियंस है जो आपको अपने आप से कनेक्ट करना, अपने माइंड को मैनेज करना और लाइफ को थोड़ा और मीनिंगफुल बनाने में हेल्प करेगा। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी छुट्टियां भी चल रही है, तो आप इसमें अपने अंदर एक और स्किल डेवलप कर सकते हैं। इससे आप फ्यूचर में आपको लॉन्ग वे में हेल्प करेगा। इसे 5.5 साल का MBBS है, बल्कि आपके पूरे लॉन्ग लाइफ में आपको हेल्प करने वाला है। हमारे साथ आपके सीनियर्स भी हैं, चेतन सर, वो आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे शॉर्ट में। चेतन सर प्लीज। Good evening to all the respected seniors, respected Dr. Naren Patel sir, and my batchmates and my juniors.
सो जैसे सर डॉक्टर रिस्पेक्टेड डॉक्टर नरेंद्र पटेल सर और सभी सीनियर्स ने सारे पॉइंट कवर कर दिए। अब मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जिससे जो मेडिकल एनवायरनमेंट है वो आपने सुना तो होगा कि बहुत टॉक्सिक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप आपके आसपास अच्छा फ्रेंड सर्कल्स रखते हो, अच्छे सीनियर से इंटरेक्शन रखते हो, प्रोफेसर से अगर आपका अच्छे प्रोफेसर से अच्छा इंटरेक्शन है, तो आपको ऐसा कुछ फील नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक मेरी बैच का ही एग्जांपल देता हूँ। आपके सीनियर्स का कुछ 16 17 आपके सर लोगों का ग्रुप था सीनियर्स का। सो उसमें से पहले जो ड्रग्स कंज्यूम करते थे वो केवल 2 4 लोग थे जो पहले से ही उनको आदत थी ड्रग्स की। सो देन उसके बाद अभी ईयर के एंडिंग में उसमें से लगभग 14 15 लोग ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। तो आप देख सकते हो कि संगत का कितना गहरा असर होता है। तो आप ग्रुप में रहने के चक्कर में ऐसा मत करिए कि आपको वो चीज आपको पता है गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन आप ग्रुप में रहने के चक्कर में उस चीज को फॉलो कर रहे हो और आप आपके कैरियर को भी खराब कर रहे हो। आपके पेरेंट्स को बहुत उम्मीद होती है आपसे, आप उनकी उम्मीदों पे भी खरा नहीं उतर रहे हो। तो आपको ये सब चीजें नहीं करनी है। और जैसे अगर आपका अच्छे सीनियर से इंटरेक्शन नहीं होगा, तो जैसे ये जो भूल भुलैया का एग्जांपल देता हूँ मैं, भूल भुलैया में आप घूम जाते हो, लेकिन आपके पास अगर एक गाइड हो तो जिसने मतलब उस चीज को फेस किया हो, तो आप उस चीज से निकल जाओगे उस गाइड के माध्यम से। तो आपका अगर अच्छे सीनियर से इंटरेक्शन होगा, अच्छे प्रोफेसर से इंटरेक्शन होगा, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी और आपकी जो जर्नी होगी वो बहुत ही स्मूथ होगी और आपको बहुत आसानी से एमबीबीएस में बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। बस मैं यही कहना चाहूंगा। और थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट बोलने का मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो स्लाइड प्रेजेंटेशन प्लीज। तो आपको इस डिवाइस के लिए क्या करना है, तो जैसे कि हमने आपको काफी सारा बताया डिवाइस के बारे में। केशव, तो हेलो, जी सर। मैं सेशन से लीव हो रहा हूँ। थैंक यू और ऑल ऑफ यू हल थैंक यू सो पेशेंट लिसनिंग। मच सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच। तो आपको सेशन के लिए क्या करना है, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस 2 4 मिनट में पूरा खत्म कर देंगे, फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे। तो ये 5 डे का सेशन होगा और अ, इसमें आपके टाइम के हिसाब से उसको ले लिया जाएगा। रोज 1 घंटे से 1.5 घंटे का ये रहेगा। तो जो उसको अटेंड डेली करेगा उसके अटेंडेंस का भी हम रिकॉर्ड बनाएंगे और हर क्वेश्चन के बाद हम इसका एक क्विज रखेंगे, आपने उससे क्या क्या गेम किया ये आपको उसके लिए। और क्विज और मार्क्स के बेसिस पे एक विनर अनाउंस होगा और कई सारे विनर्स होंगे, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस ऑफर कर सकते हैं। ऐसे तो ये कोर्स पेड होता है, बट थोड़ी रिक्वेस्ट है, ये कोर्स आप सबके लिए हमने इस बार फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो मेरा आप सबको मतलब ये एक वो रहेगा कि आप इस कोर्स को लीजिए और इसका फुल टू फायदा उठाइए इस बार। ये आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाला है। इसमें प्राइजेस काफ़ी सारे रहेंगे, बुक्स रहेगी, टी शर्ट रहेगा, बॉटल्स हो सकता है और भी डिफरेंट डिफरेंट। तो अब किसके कोई क्वेश्चंस हो वो क्वेश्चंस पूछ सकता है। हमारे बीच में काफ़ी सारे सीनियर हैं जो आंसर करेंगे। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग ओवरऑल प्रोग्राम फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड? अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप वो पूछ सकते हैं। Sir, I have a question. Good evening, sir. Myself Shivani. यस यस प्लीज। Sir, I have शिवानी, a ओके प्लीज question. प्लीज आस्क। अगर अगर क्लास में सर कुछ डिस्टरबेंस हो रहे हैं, जैसे कि मतलब बहुत से, अभी तो इनिशियल है तो इतना मतलब हम लोग अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, बट अगर ऐसे कोई बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग वे में क्लास में
हरकतें कर रहा है, तो उसे अवॉइड कैसे करें सर? झगड़ा कैसे अवॉइड किया जाए? जी, ये आपके साथ हो सकता है। एक तो फिर आप जो भी आपको डिस्टरबेंस कर रहा है, आप उससे दूर बैठना शुरू कीजिए। सबसे पहले तो आप उसके पास ज्यादा इंटरेक्ट मत कीजिए, क्योंकि क्लास में एक्टिव रहना तो जरूरी है ही। और फिर ऐसे में एकदम आप कभी भी टीचर्स को एकदम किसी की भी कंप्लेंट लेके मत जाइए, वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं बनाता है। क्योंकि अब आप कॉलेज में स्कूल में नहीं है, तो आप किसकी कंप्लेंट करने जाएंगे, उस चीज़ को नहीं है। आप उस चीज़ को इग्नोर करिए। दैट्स बेस्ट वे टू टैकल सिचुएशन लाइक दिस। इफ एनी सीनियर्स हियर वांट टू ऐड ऑन समथिंग, दे कैन ऐड। तो आप उस चीज़ को इग्नोर करिए, उस पर्सन से आप दूर बैठना शुरू कीजिए और अपने लेक्चर पे अपना ध्यान रखिए। ओके सर, थैंक यू हाँ, सो मच। एनी मोर? गुड इवनिंग सर। तो मेरा नाम अवनी है। सर आई हैव अ क्वेश्चन गुड इवनिंग। मेरा ना सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी ना मेरा सीनियर इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ। लाइक अभी मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, तो मुझे नहीं पता है कि सीनियर्स मतलब कौन कैसे हैं। तो हाउ डू आइडेंटिफाई लाइक हु विल बी मोर बेनिफिशियल टू मी, लाइक हाउ टू इंटरेक्ट विद देम? ये तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप अपने सीनियर से इंटरेक्ट कैसे करें, आप बेसिकली यही पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहला तो इंटरेक्शन आपका जो होगा वो आपके करंट सीनियर्स के से होता है, जो 2024 बैच है। तो आप हॉस्टल में शायद गर्ल्स तो सेपरेट रहती है अलग हॉस्टल में, और उनकी सीनियर्स सेपरेट रहती है। तो शायद दिवाली बाद आपके सीनियर्स आपके साथ एक इंटरेक्शन ग्रुप बनाएंगे। उस ग्रुप के माध्यम से वो खुद ही आपसे इंटरेक्ट करते हैं। इसके अलावा आप पर्सनली किसी कोचिंग के से या किसी से किसी सीनियर से आपका ऐसा कुछ डायरेक्ट नया कॉन्टैक्ट है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए, उनसे बातचीत करिए कि सर ऐसा ऐसा है। तो आपको डेफिनेटली आपको खुद से ही गाइड करेंगे। एग्जाम में आपको खुद से गाइड करेंगे, आपको वो अपनी बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। हज़ारों रुपए की बुक्स आती है, पर अगर किसी सीनियर से आपका अच्छा इंटरेक्शन हो, वो आपको ऐसे ही वो बुक्स प्रोवाइड कर देते हैं। काफ़ी सारा सामान सीनियर हेल्प आउट करते हैं, जैसे कि चाहे वो डायसेक्शन अपना आपके से देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में काम होता है। ऐसे सीनियर से इंटरेक्ट हमेशा फ्रूटफुली रहता है। उसके अलावा हमें क्या करना है क्या नहीं करना है लेक्चर्स में, प्रैक्टिकल्स में, तो ये सब सीनियर काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। तो सभी को सीनियर से इंटरेक्ट करना चाहिए। आप सबके सीनियर एक इंटरेक्शन ग्रुप बनाएंगे। आपका अगर थोड़े बच्चों का भी पर्सनल किसी से इंटरेक्शन होता है, तो वो बोलिए कि सर आप हमारा थोड़ा एक इंटरेक्शन ग्रुप बनाइए। उसमें आपके पास सीनियर का कॉन्टैक्ट होगा। आप किसी भी सीनियर को फोन करके कुछ पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि सर मैं ऐसा ऐसा हूँ। तो करंट सीनियर को ये मतलब 2024 बैच को, तो धीरे धीरे फिर जब कॉलेज में इवेंट्स होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो आपका सीनियर से ऑटोमेटिक इंटरेक्शन होने लगेगा। ओके सर, थैंक यू। तो वन मोर क्वेश्चन, जो आपने अभी ये सेक्शन बताया इस फाइल वाला, तो सर ये कब से स्टार्ट होगा एंड हाउ टू एनरोल इन? यस यस, ये हम कल से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। और इसके लिए हम आपको व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगे। अ, उस, ओके सर, उसके थैंक लिए यू। आपको व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यस ओके सर, थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? एनी स्टूडेंट, एनी क्वेश्चंस? तो कैन वी एंड हियर? तो अपने से कोई फीडबैक शेयर करना चाहता है इस प्रोग्राम का, तो वो कुछ बोल सकता है।
अगर आप में से कोई कुछ अपना फीडबैक शेयर करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, तो ही कैन और शी कैन। Sir, तो दीवा from all the batches, junior batches, and from our batch also, we express our sincere gratitude for your selfless efforts and for giving us your valuable time. Thank you so much, sir, for the fabulous session. थैंक यू थैंक्स। तो डिवाइस के रिगार्डिंग आपको व्हाट्सएप पे लिंक मिल जाएगी, उसमें आप गूगल फॉर्म फिल करके अ, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और इट विल गिव यू अ वेरी बेनिफिट। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एक आप छुट्टियों में इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू सो मच। आई होप इट वॉज अ ग्रेट डे, यू लर्न अ लॉट। थैंक यू सो मच।